जहाँ लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, एंड आई कुड हैव डन द सेम थिंग, बट फॉर मी इट वाज लाइक just fight back, dude. I did not call cancer, right? Like I did not invite it, and when it went out, why should I just repent on it? एक ही तरीका हो सकता है कि यार just take it with a pinch of salt and just get over it. It's fine. It was a bad phase. Like you can't make it the book of your life. You can make it a chapter in your life. That is what, and I still say it. Amazing. For me, that was a phase. That was a chapter in my entire book. Book तो बहुत बड़ी है. Yeah. एक चैप्टर बना के छोड़ दो ना, हो गया. Welcome back to the show, you guys. Get ready for a treat. We have Rohit Pathak in the house. Rohit is a cyclist, a runner, and a community builder. Pretty typical for people of our community, right? What's so special? Well, special is the person himself. Rohit used to weigh about 115 kilos at one point. He reduced 35 kilos. He was an unfit guy with a bunch of unhealthy habits. He is now an ultra cyclist and a runner. An ultra cyclist who has cycled from Delhi to Bombay not just once but twice. He was barely a runner at one point. He can now run a sub 100 half marathon, a 340 full marathon, and he's even done 3 out of the 6 world majors. Though these numbers are good by any standards for an amateur athlete, these aren't the reason I wanted him on the podcast. To me, what makes Rohit Pathak an inspiring individual is his journey. It's where he's come from, the struggles he's had, the challenges he's had to overcome, and most of all, his attitude towards what life throws at him. He was diagnosed with cancer. Yes, the C word that we all dread to even mention. He didn't just beat cancer himself, but is also busy spreading a message of strength and power to those who might be vulnerable and in need of hope. To me, Rohit is a real hero. Let's get to know the person. His story of having and beating cancer, his vibe and energy that he can be seen spreading every morning with Adidas Runners Delhi. Here's Rohit Pathak and me in the Find Your Ultra podcast. Indulge away. Rohit bhai, welcome to the Find Your Ultra podcast. Thank you, Vipin bhai. Thank you for calling. So good to have you here, bro. Unconventional शुरुआत करते हैं थोड़ी सी, because it's a conversation between brothers, absolutely. right? So what's up with this Adidas Runners things? मतलब आप लोग क्या? I want to know. What drugs are you guys on? It's insane. The energy, the love, the camaraderie that I see on social media. And I've met a lot of people from Adidas Runners and I know. So, and the community is built of people. Like, लोग बनाते हैं उसको. Adidas brand है, उनके पास पैसा है, वो करते हैं अपने आप को promoter, वो सब है. But it is the people who make the community and it is you guys that do that. And, you know, वो जो भी, whatever the objectives are, it comes across as something that's aspirational, that, you know, if I was a newbie, I would love to come and join. Like, even as a runner, I would love to come and join when I can wake up early in the morning. You're most welcome, I would say. Yeah, but Adidas Runners, what's the deal? So see, there's no deal. As you said, it's a community. Okay? The brand name is there, but end of the day, it's a community of runners run by runners. So if you look at the ground level, we are a running community. India, we are present in 3 major cities: Delhi, Bombay, Bangalore. Globally, we are spread almost all big cities. We present. Everywhere is the same structure. It's run by community members who are at different... Obviously, you have a captain, you have a coach, and you have crew members. A lot of admin work needs to be done. Absolutely. A lot of groundwork needs to be done. You need people to run that community as well. So that ways, it's a community. But when it comes down to what we do, there's one culture that we promote, that we are inclusive, and we promote the running culture. There is no cost involved globally. So it's inclusive when we say we're open for all age groups, all categories, whether you're a newbie or whether you're an experienced runner, doesn't matter. Sure. What pace, doesn't matter. All you have to do is just show up. एक ही criteria है, show up. Rest, we will manage. And I think the biggest example is me sitting in front of you. So when in 2017, when I joined Adidas Runners, तो मैं तो सिर्फ एक incentive के लिए गया था. The biggest incentive with Adidas Runners is, and most of the people come and talk about it, is कि 5 session join करेंगे तो एक Adidas Runners की t-shirt मिलेगी. अच्छा, and that t-shirt, हाँ, अब वो white हो गई है. अच्छा, white. So that t-shirt you can't buy from
नॉर्मल स्टोर कहीं नहीं मिलेगी. So we say कि you have to earn it, turn up for 5 to 7 यार sessions. मुझे पता होता कि टी शर्ट मिलती है तो मैं भी आया था. I just didn't know it. So Just joking. I had joined for this incentive कि टी-शर्ट चाहिए वो, because it's like a coveted medal. It is. Once you get into it, and like you said कि what is the high? The high is the people around you. It is the people who make. ठीक है? It's just not the people who are running it, but it's the people who are there in that group. Yeah. And you get hooked upon to that culture only. कि वो जो camaraderie है ना कि आप एक नए बंदे को भी वैसे ही वेलकम कर रहे हो जैसे एक पुराना बंदा है. कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, कोई मापदंड ही नहीं है. एंड दैट हुक्ड मी सो मच बिकॉज कोई जजिंग नहीं थी. व्हेन आई जॉइंड देम लाइक मैं तो 2 किलोमीटर भागता था, कोई मुझे जज ही नहीं कर रहा था वहां पे. देन स्लोली पीपल स्टार्टेड हेल्पिंग कि उस 2 को 5 कैसे करना है, ब्रीदिंग कैसे करनी है, बिकॉज कुछ पता ही नहीं था ना. ऐसे ही मुंह उठाए और भागने पहुंच गए जूते पहन के, कुछ नहीं पता था. माई हार्ट रेट यूज्ड टू शूट अप. दैट इज द टाइम व्हेन वी हैड मेंटर्स हु यूज्ड टू कम एंड टेल. तो प्रीत भाई, we had Nivi there. Hemant came in much later. Yeah. So all these people, and then there are a lot of friends that I've made over the period of time who were mentors, and we started speaking about. तो journey वहां से start हुई. And that's अब वो phase आ गया कि now it's become a full circle. I had joined in as a community member. I am part of the crew today, and it's like giving back. तो जो मुझे मिला आज मैं वो वापस दे रहा हूँ. It's a simple way, and that's how running is. That's how the sport is, right? Any sport you take it, आपको कभी ना कभी उस sport को वापस देना है. तो मेरा contribution है वो, and I think that is what is being taught in this community. I think it came into blood, and this I think we follow very, very on a very core manner. That's how we take it. कि one inclusive रहेंगे, कोई मापदंड नहीं है, कोई judging criteria नहीं है. दूसरा, we want to give that safe space to everyone. So one common factor that drives us also is, like, in the last 2 years, we started coming with this slogan that with women we run. So we wanted to promote the women running culture. Men to hai hai, but how many women can we bring on board to run? And this we did it globally. Like, हमें यहाँ लगता है बैठ के कि वो safe space नहीं है women के लिए, बहुत ज़्यादा women नहीं आ रही हैं. Internationally also it's a bigger problem. There are countries that you think that they are very, very safe, but the women get looked upon in a very different manner. For example, Japan, Tokyo, means men look down on them. They would run in their gears and people will start staring at them. That ways we wanted to give that space globally across all our community. We will, with the male members, we'll take that pledge that we will give a safe space for women to come and run with us. And I think we've been fairly successful in that. Over the period, in the last 1.5, 2 years, if I say, our women participants, women community members has grown folds. Yeah. And like, I have my own wife who's coming in. She started walking. She just used to come for her walks. Today, she's a half marathoner. She's run 3 half marathons. And I think that is the space that we gave to our friends. And then there are members who brought their wives, brought their sisters, brought their mothers. Like, we have mothers also coming and running. We have, like, there is a family who runs a generation. The father is running, the mother is running, the daughter is running, and the son is running. The daughter-in-law is also there running. Beautiful. So, वो जब आप देखते हो ना तो आपको लगता है कि ये है accomplishment. जहाँ पे there is no monetary factor involved ना. We don't do anything for money. It's out of passion that even as crew members, we show up on our events, we show up to train people. And when you see those 5 kilometer newbie runners turning into a 10K, turning into half marathoner, and then a full marathoner, and then couple of them have gone and done like ultras. Border races, ultras. तो आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया क्या जगह है? True. Wonderful. It's beautiful. And I totally agree with the point about women. It is just so much harder to get them out of their houses. And there are, of course, barriers that women have, like big barriers. But then I think one barrier that's even bigger is probably their own psyche about this. Like, उन्हें भी लगता नहीं है कि safe space है या ये मेरे लिए है या I can go out and do this. एक तो safe space हो गया. Plus अगर आप Indian culture देखो, हमारा ही घर देख लो, the women are generally working professionals, और घर भी संभालना है.
to create that balance itself is great. Like the way they handle the The way- family, the kids, the absolutely. kitchen, and then their own professional life. Yeah. उसके बीच में निकल के 2 घंटे निकाल के 1 घंटे निकाल के रनिंग करना, and then going to a separate, आप घर के पास तो भाग नहीं रहे, तो getting that time upon, and especially with families around, there are some families who would accept it, there are some families who would not accept it. Probably वो रहेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कुछ गैप रह जाए, कोई और चीज सैक्रिफाइस करनी पड़े. And to come out of that space of your own comfort zone and be there in front of people who don't know you. Right. That is also a big thing, right? It's a big challenge. It's a big taboo to come in front of people who don't know you. And आधे टाइम कई लोगों का होता है कि मैं तो रनर नहीं हूँ. Yeah. I can't run at your pace, because when they see couple of people running faster, slower, and then in those gears, you get intimidated. In right? running also the same thing happens, right? In the gym you see those big muscular guys and you're like, Absolutely. नहीं भाई, this piece is ये not तो for नहीं हो me. पाएगा. मैं तो I have a big paunch and I've just started, उनसे 5 किलो का डंबल नहीं उठ रहा है. It's not the space for me. Absolutely. And running also you see people running really fast and you're like, मेरा तो सांस फूल रहा है हाँ. 200 मीटर में. This does not belong. Like I don't belong Absolutely. here. Yeah. So to break that barrier and then the safe space that you talked about, I think one really important thing about women's health overall, Yes. women's view of their own health, Absolutely. they don't prioritize themselves at all. They are the last in the line of priority. So शायद there वो are- अपने आप को प्रायोरिटी में ना, because that's how women that's how are. the conditioning and has been. because वो अपने आप को बाद में रखेंगी. So I'm friends with Milind Soman. I do an annual run with him every year, and we've had long discussions about it. Pinkathon, he started with this this objective to create that space, like a women's run. यहाँ पे औरतें दौड़ती हैं. Yeah. So to create that space, and I was giving him also this example that even like you look at your own house. My mother, when she cooks food for me, let's say she's making a paratha for me, my paratha will be perfect golden brown. Absolutely. paratha. और अगर नहीं है तो दूसरा बन जाएगा. And when look at her eating, look at her plate, वो जला हुआ है, Exact. कोई कैसा फर्क है, नहीं है. वो चल जाएगा. बट मेरा परफेक्ट होगा. फैमिली एकदम परफेक्ट रहेगी. Absolutely. फैमिली का पूरा ख्याल रखा जाएगा. अपना doesn't really. लास्ट प्रेफरेंस है ना, जो बचा है उसी में. And I think we owe it to them. Then I think Absolutely. we owe it to them to. It's a big way of giving it back also. Yeah. कि अगर आप वो दे सकते हो ना किसी को कि यार अगर मैं प्रायोरिटी हूँ तो आप भी प्रायोरिटी हो. I think that is very very important. And I think as a community, as a running community or probably a cycling community or any other sports, Yeah. we should give that space. Like there are women who want to come out. You have to get them out of that comfort zones and bring them. If a man can run, I'm sure women can run in the family as well. Means, and you look people around you, there are much ace runners who do so well. Yeah. आपको बस उनको वो एक comfort zone देना है कि यार मैं खड़ा हूँ आपके साथ. You do what you want to do. You want to run 2K, you want to run 5K. Nobody's judging you, no? Right. जो करना है दिल से करो. और we have your back. That's the way we say, right? Like we have your back. Amazing. That's what I try and do at my home as well. So whenever Absolutely. my fitness journey begins or resumes or whatever, I make sure that there is a plan for my wife as well. Absolutely. Like let's do this together. वो साथ में होगा तो और अच्छा होगा. और कभी भी ये हो जाएगा ना कि if I'm on my fitness journey and I'm killing it in whatever ways, and her health is suffering, this will never be a happy family. No, it can. It'll never be. It takes. I think वो ना balance हाँ. नहीं बन पाता है. And I've seen that when I used to cycle और तो long distance cycling चलता था तो वो balance नहीं बन पाता था. Now that Shivali is also a part of it, like we come back together, we go together. Yeah. वो आपको ना वो time मिल रहा है. Like that's your me time that you generally don't get as a husband and wife, as a partner at home. That's something we need to normalize now. Like, so this is like even with friends. Like, why can't we? So catching up over workouts, spending time with the spouse over workouts. That's also time, right? आप जा रहे हो, आ रहे हो, workout भी इकट्ठा कर रहे हो. Like वो driving distance में ना हमारे ऐसे कई conversations हो जाते हैं जो हम normally घर पे नहीं कर पाते हैं. You don't get time. Professionally, you get so much occupied with your work. And especially at this time when things have moved back to normal. Like एक बार लैपटॉप खुला तो फिर मतलब you will never get time to. फिर वही हो जाता है शाम को आप आए बेटे के साथ टाइम देना है, फैमिली के साथ टाइम देना है, खाना खाया सो गए क्योंकि सुबह उठना है. The circle keeps going. But when you have that partner along na, then it becomes much smoother. Like I'm telling you, my running journey has become much smoother since the time Shefali has moved into this. I can totally imagine now. Yeah. So it's a great thing. Get your spouse along. Yeah.
Wonderful. Great, sir. What a beautiful note to start on. Let's talk about you. Let's get to know you as a person. Like before we started rolling, I was telling you, you come across as somebody who's a wonderful person at heart and is a people's person. The vibe and the energy, and then the story that you have is, for me, that's an add-on to your life and your personality, because that's also super inspiring. But that's all, like, even without all of that, you're a vibrant person. So let's get to know you. There are quite a few things I want to cover in the next hour or so. Please tell us, take us to your childhood. Where were you born? What was it like? Okay, so if I have to give you a background of me, so by blood I'm a Gujarati. Okay. Never stayed in Gujarat. Probably a handful of times I can count on my one hand that I've visited Gujarat, where my extended family is, especially for functions. So I was born in Dhanbad, which is then Bihar, now Jharkhand. In our age, उस समय ये होता था कि ननिहाल में बच्चे पैदा होते थे. तो my Nanihal was Dhanbad. Achha. Because my mamas and everybody were into coal business. And my father's side belonged to Kanpur because they were settled there. Again, Gujaratis, but settled there. And my father used to work as a chief accountant for a company in Nepal. But we stayed on the border. So we were on the Indian side and I could cross the border every day because koi regulations nahi tha. And I think my first 17 years of my life, I've studied there, stayed there, did my 10th from one of the convent schools there. And then for higher studies, because the school 10th tak hi tha. So I had an option to move to Lucknow or I had an option to move to Delhi. I moved to Delhi with my Masa and Masi. They used to stay here. And I came to Delhi. So why did you have these options to move? Why did you have to move? So there was no 12th in that place. Okay. Because it was I would not even say Hindi mein gaon or English mein Hamlet bol lo. It was that small. Okay. The convent school also being there was a big thing. Okay. अगर मैं बात करूं 1998 में तो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक 10 घंटे दिन में आती थी, शायद उससे भी कम. 10th मैंने मेजॉरिटी लैंप में दिया है. ठीक है. सो आई हैव सीन दोज हार्डशिप्स ऑफ माय लाइफ वेयर जो हम बोलते हैं ना कि लैंप के नीचे बैठ के पढ़े हैं, तो मैं लैंप के नीचे बैठ के एक्चुअली में पढ़ा हूँ. जनरेटर नहीं होता था. एंड आई कम फ्रॉम दैट एरा जब महाभारत वो टीवी के बक्से में देखते थे और मोहल्ला आता था देखने के लिए, तो वो वाला टाइम है. एंड nearest big city was Lucknow, which is 190 kilometers away. So nearest education for higher studies, you had to go there. 11th and 12th at that point of time was higher studies. You had some relatives there also in Lucknow? No, I had to stay at a hostel or on a PG. Okay. So being the only child, क्योंकि इकलौता लड़का, कोई बहन भाई नहीं, रिश्तेदार के पास भेज. हाँ, तो मेरे पिताजी और माताजी ने सोचा कि दिल्ली भेज देते हैं, एटलीस्ट निगरानी में तो रहेगा. And my Mausaji, who's no more now, but they did not have any kids. So I was actually like a child to them. And that's where I started. I came in over here, 11th, 12th. And I think immediately after 12th, I started working because I did not want to put a burden on the family. My mom was a teacher till that time in the same school where I was studying near Nepal. And she was head of department for Hindi. And my father had left his job and he started like a hardware business, which is not doing too great. तो मुझे था कि यार ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, नौकरी ढूंढ लेते हैं. तो 12वीं के बाद वो एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी. वो नौकरी अच्छी लगी. सेल्स था and I had to sell washing machines. So I joined this company called Electrolux, which was then part of it, Kelvinator Group. So washing machine बेचते नौकरी अच्छी लगी. So I started continuing and I started doing my studies side by side, my graduation and everything. And फिर तो कभी मुड़ के देखा नहीं, मतलब and self independent एक बार आप हो जाते हो तो फिर वही रास्ता चलता है. So your parents? So my parents at that point of time were till there back home. And 2003 when I joined in HCL, उसके एक साल में my parents shifted here. What did you study in college? So, I did commerce. So I was a BCom graduate. Okay. And I did commerce. Or I had initially 1.5 साल washing machines or refrigerators बेचे. And then a friend of mine told me that
your English is pretty good, you should try your hands with contact centers या call center कॉल बोलो. सेंटर्स. और Genpact तब सबसे बड़ा नाम होता Yeah, था yeah. जी. तो उसने बोला एक बार जाके लक ट्राई करो. गया, मैं इंटरव्यू दिया, दे सेलेक्टेड मी, बट ग्रेजुएशन कर रहा था. सो दे सेड कि दो यू आर सेलेक्टेड बट वील नॉट बी एबल टू गिव यू द सैलरी. ओवर क्वालिफाइड. I was ओवर क्वालिफाइड ऑन एक्सपीरियंस बट अंडर क्वालिफाइड ऑन एजुकेशन. तो ग्रेजुएट को उस समय सिर्फ 4,000 रुपए तनख्वाह देते थे. अच्छा. और मेरी तनख्वाह थी उस समय कुछ आई थिंक 7 या 8,000 रुपए प्लस इंसेंटिव्स. तो उन्होंने बोला कि यार ये तो मैच नहीं कर पाएंगे, तो अब ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद आ जाना, तो 7,000 रुपए दे देंगे. एंड देन आई गॉट टू वर्क विद अनदर कॉल सेंटर. 1 साल काम किया. HCL हैड एन ओपनिंग. I joined HCL on 27th Jan 2003. And they had, that point of time, bagged the biggest contract in the contact center industry. They had bagged customer service for British Telecom, which is UK. Yes, BT. BT. So मैंने 10 साल HCL. What year was this again? Early 2003, Jan beginning में process start हुआ था. I one of the few people. went to the UK in 2005. 2005 to 10 I was there. Oh, nice. So for BT, all the calls that we had to make were routed to India. Probably Yeah. me or someone from my team would have handled it. Yeah, but no, I also worked in call centers quite a bit. I also started. And I think so many almost of our all that friends, era has worked across. So है ना. और वो टाइम था कि जब इंग्लिश की बहुत कीमत भी थी उस टाइम पे. हाँ है बिल्कुल. ना. और हिंदी, if you were speaking Hindi, you were looked down upon at the time. अभी भी है, but अब तो Probably- लेकिन अब हिंदी को थोड़ा ड्यू इम्पोर्टेंस मिल रहा है. मिल उसका. गया है. अब लोग पोइट्री करते हैं और किताबें लिखते हैं, पढ़ते भी हैं. इट्स नॉट इज नो लॉन्गर लुक डाउन अपॉन कि आप. इनफैक्ट आई गेट क्वाइट fascinated. मुझे बहुत ही आई मीन ऑफ ऑल दीस पीपल हु कैन रिसाइट रियली अमेजिंग obviously. पोइट्री. Like- वो शुद्ध हिंदी में बात करने वाले ना लोग बहुत बहुत कम मिलेंगे. पुष्कर के साथ मैंने एक एपिसोड किया था. Okay. एक पुष्कर इज अ फोटोग्राफर, नॉट जस्ट फॉर हेल रेस बट मेनी रेसेस Oh, इन nice. इंडिया. And you should check out the episode. Nice. It's a listen wonderful to it. episode. और हिंदी और काफी कुछ देखने को मिलेगा कि वो Awesome. अलग ही दुनिया है. This guy Ankush, my friend, also keeps posting so many Hindi books and stuff. मैं कहा भाई ये इतना कुछ है क्या हमें. नहीं, अगर आप लैंग्वेज में घुसो हाँ. तो लैंग्वेज है तो काफी डीप. हाँ. इट्स जस्ट दैट आज की डेट पे वो जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो गया ना वो इंग्लिश में ही हो गया है. तो आप Yeah. वो आई थिंक उसका महत्व कहीं ना कहीं हम कम कर देते हैं. महत्व कम नहीं है, हम ही उसको कम कर देते हैं कि हमारा नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में होना चाहिए. हाय हेलो भी इंग्लिश में चल रही है, नॉर्मल आप हिंदी में बात करते नहीं हो. बट या मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इंग्लिश पीपल हु कुड स्पीक इंग्लिश लाइक इट वाज रियली अ बिग है ना. उस टाइम पे बड़ी बात थी. हाँ, आजकल तो सब बोल लेते हैं पर उस टाइम पे लगता उस टाइम में तो था. हाँ. And I think what we're talking is about 20 years back. So Yeah, correct. Yeah, I think we're from the same gen. How old are you? 42. 42. Yeah, I'm 39. Similar. Yeah, same. Yeah. What was your health like when, let's say, after you? बचपन से ही बता दो. What was your health like? बचपन से You. The reason I asked this question is because I want to get to weight loss thing, and I know you've had your struggles, and you reduced your weight from 115 to 75 kgs. 120 to 75. 120 to 75. ये phase था ये. But people would see this and then click on it and then say इसने क्या किया. I don't want to talk about आपने क्या किया और कम कैसे किया, because I don't want this to be a weight loss episode. उसमें जितना ज्ञान है वो controversial है सारा, and what one thing might work for one person Exactly. may not जो for मेरे लिए another. काम कर रहा है वो So जरूरी नहीं है. what I want to hear from you is your experience with it, like your journey with it, having like being somebody who struggled with weight all his entire life. I know that world is dark. I want to hear what's your experience Yeah. been like. Means dark is an understatement. I think if I'm 42 and I roll back 2021, so maybe 3 years and maybe 2016, so 8 years अगर हटा दूं तो जो 33-34 साल तक का जो रोहित था ना, तो I used to be and I was fat. I was not fat, I was obese. तो बचपन से ही तंदुरुस्त था मैं. Wherein my parents Healthy, were हाँ. opposite. Healthy. Like अच्छा खाने वाला जिसने कभी खाने पे उंगली हटाई नहीं है. तो अगर मैं आपको बोलूं स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. ये रनिंग वनिंग नहीं करता था. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, ये 2 गेम खेलता था. एथलेटिक्स में ओके था मैं. जैवलिन वैवलिन करवा लो. आई यूज्ड टू बी अ हाउस कैप्टन. तो उन सब चीज में ठीक था. आई वाज चब्बी.
तो वो बचपन में ना आपको सब क्यूट ही बोलते हैं, एक चबी है, क्यूट है। मुझे याद है वो मामा के घर जब मैं जाता था ना, तो मेरा समर वेकेशन हमेशा धनबाद में ही निकलता था। तो वहाँ गया और पूरा मोहल्ला जानता था, तो सुबह से शुरू होता था, मैं तो हॉप करके जाता सबके घर, कोई ना कोई वो बेटा है खा लो। तो बाय द टाइम मैं लंच में घर आता था ना, तो पेट भर चुका होता था, इतना खा लिया है। और हमारे यहाँ गुजरातियों में क्या है ना कि खाना सारे साथ बैठ के खाते थे, लाइक द होल फैमिली विल बी देयर। अब मेरी सारी मासी आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं, सारे एक्सटेंडेड कजिन बैठे हुए हैं, और मैं मना कर रहा हूँ। मैं नानी का होता था लाडला, तो खाना नहीं खाया, तो घर वालों को आधी प्रॉब्लम इस बात से, खाना क्यों नहीं खा रहा है। और जैसे उनको पता चलता था कि ये तो कहीं और से खा के आया, तो वो लगता था कि नहीं ये तो नाक कटा के आ रहा है। तो मेरे मामा ने मुझे लिटरली बना के किसी के घर नहीं खाएगा, तो यहाँ खाएगा खाना। तो मैं आई स्टिल लव फूड, खाने से बहुत प्यार है मुझे। ओबेसिटी वहीं से बिल्डअप शुरू हुई, एंड देन यू गेट इनटू दैट वर्किंग कल्चर। तो जब आप कॉल सेंटर्स में आ गए, आपने काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे 2003 तक तो सारे ऐप से दूर था, लेकिन फिर वो देन यू गेट इनटू दैट एटमॉस्फेयर ऑल्सो, जहाँ आपके फ्रेंड्स आर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, यू स्लोली कैच अप। सो ऑब्वियसली अब उसी एटमॉस्फेयर में रहना है, बढ़ना है, तो समय के साथ मैं भी तब्दील हो गया, और ड्रिंक स्टार्टेड हैपनिंग एंड योर सिगरेट स्टार्टेड हैपनिंग। ये दो छोड़ के तो कुछ नहीं किया, बट यही दो साथ चलते रहे। वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा वो ऊपर नीचे कर रहा था, बट और मेरे को खाना लगता है, लाइक वो वाला हाल है, पानी भी लग जाएगा टाइप। और आई थिंक द टर्निंग पॉइंट, और मोटा मोटा करके जिंदगी भर चढ़ाया है सबने। लाइक एट टाइम्स ऐसा होता था कि अगर क्रिकेट में, क्योंकि मैं ठीक था, तो जगह मिल जाती थी, वरना 12th में नहीं बनता, ये वाला हाल था। तो स्कूल में इतना कोई आपको ध्यान देता नहीं है, बट नाउ व्हेन आई गो बैक एंड लुक एट माय पिक्चर्स, आई लुक मींस आई वाज फैट, एंड obviously it's a dark side. People don't look at you like that in a good manner, right? And आपको खुद ही लगता है, बट शायद मुझे नहीं लगा वो। एंड 2003 HCL हो गया, 2006 we got married. It was means मेरे लिए तो I was 24 when I got married. शिफाली was 27. शादी की फोटोज भी देखता हूँ तो लगता है यार मैं क्या था भाई। और आई थिंक turning, and then 2012 when I left HCL and I joined another call center. Okay. US शिफ्ट थी वो, HCL में जनरली UK शिफ्ट थी। उस US शिफ्ट ने ना काफी चेंज किया, लाइक माय लाइफ साइकिल चेंज। तो जब दुनिया सो के उठती थी, हम ऑफिस खत्म करके पार्टी करने जा रहे होते थे, एंड अल्कोहल, एंड ऑब्वियसली साइकिल चेंज हो गया आपका। एंड आई ऑलमोस्ट, इफ आई टेल यू, वो ऐसा साइकिल हो चुका था, एंड मीन्स इट टर्न्ड मी टूवर्ड्स बिकमिंग अ कंपल्सिव अल्कोहलिक, यू नो, मीन्स एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ अपने साथ, यू नो, माई स्लीप साइकिल हैज गॉन, आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट। और मुझे ना सेल्फ रियलाइजेशन आपको तब आता है कि जब आपके कपड़े आपको फिट नहीं होंगे। मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरा सेल्फ रियलाइजेशन का फ्रस्ट्रेटिंग दिस कैन बी। सेल्फ रियलाइजेशन मेरा ना उसी दिन शुरू हो जाता है। और 2-3 ऐसे मौके आए जब मैं शिफ्ट करके घर जा रहा होता था, एंड आई ट्राइड एंड लाइक झपटी टाइप आई गाड़ी चलाते समय, मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट राइट। 2 साल हो गए थे। आई टुक अ कॉल, आई स्पोक टू शिफाली एंड आई टुक अ कॉल दैट आई नीड टू फाइंड समथिंग एल्स। ये नहीं हो पाएगा। ये भी कोशिश करी कि अल्कोहल छोड़ देता हूँ, बट देन यू 4 दिन छोड़ दोगे, यू गेट पुल्ड ऑन, लाइक सोशल कमिटमेंट्स हैं, ऑफिस की पार्टीज हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू बिकम लाइक you're a leader, right? Like you have to entertain. कितना मना करोगे? And that's when I left and I moved to the startup world. 2015 I joined in Zomato. Thankfully Zomato had a gym in the office. तो पहला स्टेप था जिम, कि यहाँ से शुरू करते हैं। आई थिंक वहाँ से एक हल्का सा जो फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना कि आपने लिया, वो फर्स्ट स्टेप वहाँ से शुरू हुआ। जिम ज्वाइन किया, बट समहाउ आई रियलाइज कि मैं जिम वाला आदमी हूं नहीं। प्लस ऑफिस के जिम वर्सेस एक नॉर्मल जिम में ना एक फर्क ये होता है कि ऑफिस में आप अपने टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो, जरूरी नहीं है हर कोई इस टाइम पे वर्कआउट करे। तो एक तो बोरियत, कितना ही कर लोगे, अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि कोई ट्रेनर नहीं है आपको बताने के लिए।
तो वो बोरियत बिल्डिंग होती शुरू हो गई कि आज छोड़ दिया कल कर लिया। तो एक दिन मुझे याद है मैं बैठ के एक फ्रेंड के साथ ओवर द ड्रिंक्स वी वर डूइंग अ कॉन्वर्जेशन कि मैं ना फिटनेस फर्स्ट या ये एनी टाइम फिटनेस टाइप ज्वाइन कर लेता हूँ GK2। तो उससे बोला कि क्यों पैसे कितने की मेंबरशिप है, मैंने पैसे बताया, उसने बोला साइकिल ले लेता है, साइकिल चलाएंगे दोनों भाई। मैं बोला बढ़िया बात है। मैं तो सूरज कुंड रहता हूँ, GK2 रहता था। बोला आधे रास्ते मैं आधे रास्ते तू। मैंने ठीक है। शिफाली से बात करी, शिफाली ने भी बोला हाँ ठीक है साइकिल ले लो, आई विल गेट यू साइकिल। मार्च की बात है, अप्रैल 1 या 2 को ले ली पहली MTV। इसके पास ऑलरेडी साइकिल थी, पहली राइड भी नहीं आया भाई। और वहां से अब मैं सूरज कुंड, रास्ता भी एकदम माशाल्लाह ऊपर नीचे। किसी तरह मुझे उस समय समर वेकेशन वो सेशन का ब्रेक शुरू हुआ था और मेरे कॉलोनी में ना 3-4 बच्चे थे जिन्होंने आई थिंक 10th कंप्लीट करी थी या 12th कंप्लीट करी। उनका अपना एक छोटा साइकिलिंग ग्रुप था। उन्होंने बोला भैया आप हमारे साथ साइकिलिंग करो। ठीक है चलो। मैंने 30 डे बिना नागा साइकिल चलाई। पहले दिन 17 और उसके बाद वो 1-1, 2-2 किलोमीटर रोज बढ़ते चले गए। 30 डे मैंने अपने आप को एक वो बोला कि रोहित 30 दिन नागा नहीं करना है, 30 दिन साइकिल चला। करते करते कभी कुतुब मीनार 30, 30, 35, 40 ऐसा होता गया। उसमें से एक बच्चे ने मुझे बोला कि भैया दिल्ली में एक ग्रुप है दिल्ली साइकिलिस्ट, आप ना उनको ज्वाइन कर, आपके लिए बेटर हो जाएगा। मैं ठीक है। मैं गया एक दिन, ये बोला कि वेडनेसडे संडे राइड होती है, आप आ जाओ। थैंकफुली बड़ी गाड़ी थी मेरे पास, साइकिल टांगी, पहुंच गया। MTB थी, वहाँ सारे रोड बाइक वाले और माशाल्लाह वेट तो था ही अपने पास। तो पीछे पीछे हमेशा ही पीछे रहता था, बट मैं बोला नहीं करेंगे आई थिंक। एंड द गुड थिंग वाज कि अगेन इंक्लूसिविटी, वेलकमिंग। तो मुझे भी लगा यार ये तो बढ़िया चला रहे हैं, इनके साथ करो। वो 30 किलोमीटर 40 और 40 से 50 और आई थिंक द फर्स्ट 100 जिस दिन मैंने किया ना, उस दिन किया था मैंने कुछ 4.5-5 घंटे में। बट वो लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट जो मुझे मिला ना, एंड व्हेन यू केम बैक लाइक एवरीबॉडी क्लैप्ड एंड दे स्पोक वेल अबाउट यू, वो जो फीलिंग आई ना कि यार मतलब 100 किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने, विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे। मुझे याद है मैंने गौरव को, जो दिल्ली साइकिलिस्ट का फाउंडर कैप्टन है, मैंने गौरव को बोला, गौरव वाधवा, हाँ वाधवा, तो उसने बोला कि यार फैंटास्टिक जॉब, लाइक लुक वेयर यू हैव कम। लाइक MTV पे थे 30-40 चलाई नहीं जाती थी। 75 मुझे याद है जब मैंने किया था तो एकदम ही खत्म हो गया था। 100 करी, चाहे जैसे करी, लेकिन दैट डूइंग 100 किलोमीटर्स इज अ बिग बैरियर दैट यू ब्रोकन, यू नो। ये बात होगी 2016 मई और जून की। जुलाई में पहला ब्रेवे साइन किया था मैंने 200 किलोमीटर का। अगस्त में हमें ये पता था कि द्रविण भाई साहब आने हैं, माई वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग। अच्छा। August 4 द्रविण गॉट बॉर्न। मेरी पहली ब्रेवे 31 जुलाई को हुई थी, 200 किलोमीटर, दिल्ली से पानीपत। गवर्नर ने मुझे एक रोड बाइक दी थी, मैं इस रोड बाइक पे करना, तो ऐसा दुखा ना, मतलब करी तो अच्छे से ठीक ठाक करी थी। आई थिंक मैंने 11 घंटे में नहीं 9.5-10 घंटे में कुछ किया था मैंने। और पहली राइड इतनी लंबी, मतलब जब पहुंचा था तो सारा सब कुछ दर्द कर रहा था, बट अगेन फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। 4 दिन बाद द्रविण आया, भाई इससे बढ़िया लाइफ में क्या हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा आया, हाई टाइम चल रहा है, हाई टाइम चल रहा है। वेट लॉस जर्नी शुरू हो चुकी थी, आई हैड स्टार्टेड लूजिंग वेट। बट इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरस्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फर्स्ट 100K राइड, और चाहे वो जिस एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरस्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नाउ सेइंग कि जैसे मर्जी करी, जितने मर्जी घंटे में करी, 4.5 में 5 में, बिकॉज दैट्स व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम इवन ट्राइंग, लाइक टू गेट टू दैट। कि अगर आप इसी का सोचते रह जाओगे कि ये पहले दिन में तो सचिन तेंदुलकर को भी तो कितना टाइम लग गया था पहली सेंचुरी मारने में। गेट स्टार्टेड, दैट वन डे सेंचुरी टुक एजेस एंड वी यूज्ड टू लाइक गेट हुक्ड, और इफ यू रिमेंबर लाइक एट आवर एरा हम बोलते यार फिर 90 पे आउट हो गया, बट इट टुक हिम टाइम एंड इट इज पेशेंस, इट इज, एंड यू हैव टू गिव टाइम। लेकिन वो भी, और मुझे तो लीप ऑफ फेथ थी, क्योंकि आई हैव बीन एन ओवरवेट पर्सन एंड आई नो हाउ डिफिकल्ट कैन दैट मूव बी। ये फैसला भी कि इनके साथ जाऊंगा और मैं 100K करूंगा,
ये भी आई थिंक इट्स अ लीप ऑफ फेथ दैट यू नहीं बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं था कि सारे ही धुरंधर थे. There were people who were slow riders, there were people, और ऐसा नहीं था कि मैं अकेले ही चला रहा था. There were people who were with me, like who were pushing कि नहीं होगा. और मुझे याद है कि मैंने मानेसर से यू टर्न लिया होगा, मैंने बोला यार मुश्किल लग रहा है. गौरव वाज लाइक कि नहीं करेगा, छोड़ना नहीं है, बस पेडल मारते रहे. यू नो दैट कॉन्फिडेंस, किसी और का कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है. आपको लगता है कि यार ये बंदा अगर मुझे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, मेरे साथ वाले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं. स्टिल रिमेंबर हृदय सर होते थे, मोना मैम थी, ये लोग साथ में राइड कर रहे थे. दे वर लाइक कि नहीं होगा. गर्मी बढ़ते जा रही थी. आई स्टिल रिमेंबर हम लोग गुड़गांव में एंटर करे, एम्बियंस के आसपास सपोर्ट व्हीकल, पानी दिया, होगा कंप्लीट करना है, वो ध्यान में रखना, बाकी सब हो जाएगा. क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, आप 5 में भी पहुंचो और आप 4:30 में पहुंचो और आप 4 में भी पहुंचो, फिनिश तो कर रहे हो ना. 100K एंड दैट faith of others in you is more important. कि आपको लगता है यार I can't let these people down. आप अपने आप को तो let down कर ही रहे हो अगर आप छोड़ देते हो, quit कर देते हो. And thankfully one thing which I don't know where it came in me, and it's always been कि I have never quit. रो के करेंगे. वहां से सेम वे वो 200 हुआ. अब जो फास्ट वाले थे वो तो निकल गए ना आगे. अब ब्रेवे इज योरसेल्फ, यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. एंड आई स्लोली, और मुझे याद है सबसे पहली गलती मैंने वो करी थी, जो मींस आई वोर एन अंडरवियर अंडर माय साइक्लिंग पैंट्स. रैशेस, amateur mistakes, like, and this is amateur cyclist mistake. And I had I think विक्रम दत्ता with me, is an ex forces. उन्होंने बताया और वो फोर्सेस की साइकिलिंग टीम के कोच होते थे. उन्होंने बोला बेटा ये तो पाप कर रहे हो तुम. ढाबे में उतरा मैंने, आई टुक इट ऑफ, पहना, वैसलीन लगाई और बैठा और कंप्लीट करी. बट अगेन दैट 200 फिनिश इटसेल्फ इज सच अ बिग थिंग फॉर यू कि यार 100 से 200 लाइक सीधे जंप, बीच में कुछ नहीं था. आपने 150 भी नहीं करी, आप सीधे 100 से 200 पे आए. रोड बाइक जो कभी चलाई नहीं. एंड दैट्स हाउ आवर वेट लॉस जर्नी शुरू हो गया था तब तक. ठीक है, दिख रहा था मुझे. एंड जस्ट बिफोर वी लूज दिस थ्रेड, सॉरी, एक बात इसी पे आई जस्ट वांट टू अंडरस्कोर एंड अंडरलाइन. जो तालियां लोगों ने बजाई आपके 100K पे, आई रिमेंबर माय फर्स्ट marathon that I did, first ever run was a marathon, first ever event was a full marathon. When I crossed the finish line, उस क्रॉस करने से भी पहले, इनफैक्ट those claps got me to the finish line. जब आखिरी का 1 किलोमीटर था या कुछ था, 2-3 किलोमीटर पहले से दोनों तरफ लोग दिख रहे थे और वो जो तालियां बजा रहे थे ना, that was the moment I think it filled me with something. कुछ वहां से उनकी तालियों से कुछ निकल रहा था जो मेरे अंदर जा रहा था. मेरे को हमेशा वो ना आखिरी मुझे हर रेस के अंदर ना मुझे लगता है कि कहीं सपोर्ट मत दो, वो आखिरी 2 किलोमीटर दे दो या 1 किलोमीटर दे दो. क्योंकि दैट वाइब जो होती है ना, जब आपको लगता है कि यू आर नियर द फिनिश लाइन एंड देन देयर आर पीपल चीयरिंग फॉर यू, देयर आर majority of them wouldn't know you also, but that way, and I'll circle back on your first thing when you talked about community. That is one way we think that we as a community give it back. When every race we participate or we don't participate, we are racing or we are not racing, we turn up on the ground, pick up a point and cheer every person who's running. I think that's very important. क्योंकि वो जो लोग भाग रहे हैं ना, उनको मोटिवेट करने के लिए वो आपका चीयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक यू सेड, राइट, इट्स जस्ट नॉट अबाउट एडिडास रनर्स, इट इज अबाउट एवरीवन रनिंग देयर. सो हमने वो कॉमन है हमारे बीच में, एक पैक्ट है अनसेड. अगर आप रेस कर रहे हो तो फिनिश करके आओगे, और आप रेस नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली आओगे. आई रिमेंबर 2022 एनडीएम, आई वाज नॉट रेसिंग. 4:30 का फ्लैग ऑफ था. 2 फ्रेंड्स को मैराथन लाइन पे ड्रॉप किया एंड 4 o'clock आई वाज रिपोर्टिंग एट द चीयर पॉइंट. 4 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक चेयर किया. गला चला जाता के लिए 4 दिन गर्म पानी पीना है आपको. बट दैट हाई दैट यू गेट पुशिंग पीपल, I think that is the best high you can get in life. So true. And you when you're doing this, you're actually not just doing it for your friends or family or community. मुझे लगता है you're raising the bar for the sport itself. Absolutely. So हमने जब Team Sunchasers, the ultra running community that we have, when we were all active, now we are all a little scattered, we are all busy in our lives and not running much, but we will get back to it. When we were at our prime in this group, all of us were doing ultras all the time. Every single race, you know, there's somebody or the other running, and we made a team, we made a crew team, and we were out there. और ये तो half marathons भी नहीं है, ये these are ultras. Absolutely. Where like
भाई साहब 32 घंटे 24 घंटे आपकी टीम रहेगी वहां पे, टीम नहीं रहेगी, एक बंदा रहेगा, दो बंदे रहेंगे, बहुत वो important शिफ्ट्स है। लेते रहेंगे, एंड व्हेन यू डू दैट you know it's such an just to crew is such an enriching experience for yourself, but also you're participating in somebody else's dream coming true. And when you build that camaraderie, when you do that for each other, you're making the sport rich in It's actually, you said the right thing, you're making the sport rich. yeah You know, you're not doing it for yourself. You're not getting any personal glory out of it. Yeah. You're not getting any accolades out of it. You're not doing it for any medal. You are doing it for that sport. You're doing it so that people feel happy to come for another race. You know, means it's there is no selfish motive to it. and you do it out of love, like nobody can That's- force you to do. आप खरीद के नहीं ला सकते हो किसी यार आप को सुबह ऐसा। 4 बजे किसी को बोलो आप रेस में दौड़ नहीं रहे, लेकिन 4 बजे सुबह पहुंचना है और अगले 5 घंटे एक पैर पे खड़े होकर लोगों को चीयर करना है, और मैं कह रहा हूँ पैसे भी आप दे दोगे ना तो आप देखो तो भी नहीं होता है। पेड वॉलंटियर्स का देखो पेड क्या होता वॉलंटियर्स नहीं करते ना। है। लाइक आई रिमेम्बर हाँ। कि हम लोग और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हम लोगों ने मतलब रेस, व्हेन वी रेस लाइक 1:45 1:40 में दौड़ के खत्म करके लोग स्ट्रेच करते हैं, हम लोग वापस ग्राउंड पे आके लोगों को चीयर कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब मैं दौड़ रहा था तो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस थी वो, और आज भी कितनी इंपॉर्टेंस है। Yeah, bro. एंड व्हेन पीपल कम टू यू एंड पीपल रिकॉग्नाइज यू, यार वो जो आखिरी में किया था ना दोस्त, मजा आ गया, वो है मेरा मेडल। Stays with you for life. Like I have people commenting that you guys are kick ass man, that vibe is different. Yeah. वही चाहिए और क्या चाहिए यार। मतलब अगर अगला बंदा वो मेमोरी लेके जा रहा है ना कि मेरे आखिरी 1 किलोमीटर में ये लोगों ने धमाल मचा दिया था, Yeah. you know, means So that is your love, means so that's what true, you take dude. back. And I think it's across all genres of running and everything, Absolutely. trail running and stuff. I can't help but remember all the times when Biplab and Binay and Suraj Chadda, ये लोग अपनी 12 घंटे की रन खत्म करके आए हैं, या 24 घंटे की समटाइम्स। 24 घंटे आप दौड़े हो अगर स्टेडियम में, आप तो रात को सोए भी नहीं। उसके बाद the you know what you're really craving is a bath and your hotel room. Absolutely. But if you're there for even like 6 hours after that, बहुत that बड़ी just चीज है वो। says something यार, मतलब वो कुछ वो अलग बताता ही है ना कि अलग how ही much प्यार है वो फिर कि वो community का। आपका अपने क्रू के लिए या एक कम्युनिटी के लिए, एक स्पोर्ट बिल्कुल। के लिए कितना बड़ा प्यार है। Yeah. कि आप जो बॉडी को रेस्ट दे सकते थे, Right. उसकी जगह बॉडी को अगले 6 घंटे का और पेन दे रहे हो। Right. बट यू जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ लव। Yeah. कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। And you can't force people to do it either. जो आई डोंट नहीं थिंक करना है वो नहीं करना इट्स है। नेवर इट इज आस्क्ड Yeah. नॉर इज इट फोर्स्ड, इट जस्ट कम्स आउट ऑफ यू। Yeah. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी। I'm loving this conversation. बहुत बढ़िया। Yeah, coming back to your weight loss. So weight loss journey had begun there when you हाँ, done तो आई the थिंक 200K. साइकिलिंग से शुरू हो गया था वेट लॉस जर्नी। हाँ। एंड आई स्टार्टेड रिड्यूसिंग वो 120 से 110 105। 2016 में आई थिंक पहला मौका था G2G करने का, और मैं तब गौरव और ये लोग कर रहे थे और मैं इनके साथ राइड्स पे जाता था। somehow things didn't work out. Draven was couple of months old. तो मेरा भी उस समय ये था कि फैमिली को टाइम दे लो, and I had taken a sabbatical then from work because Draven had come very late into our marriage. So I was at home being with him. तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। टल गया वो। 2017 साइकिलिंग चलती रही वापस, और उस समय मैंने थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया था साइकिलिंग से। ब्रेक ले लिया तो प्लेटो बन गया। अब वेट अटका हुआ है, 105 भी घूम रहे हो आप। फिर साइकिलिंग शुरू करी, धीरे 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 वो साल निकला, G2G का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आया, कर दिया रजिस्टर। और आई थिंक दिल्ली साइकिलिस्ट से उस वाले एडिशन में मैं इकलौता था। एंड देयर वाज वन फ्रेंड हु हैड कम फ्रॉम यूके, उन्होंने राइड करनी थी और उनके साथ साथ मैंने भी कर दिया रजिस्टर। लीप ऑफ फेथ। बेसिक रोड बाइक थी मेरे पास उस समय, रोड बाइक पे मूव हो चुका था मैं, बट माशाल्लाह वेट तो था ही। और लॉन्गेस्ट राइड मेरे ख्याल से मैंने करी थी 200 किलोमीटर की, वही ब्रेवे जो 2016 में करी थी। चले गए जी। राइड शुरू हुई दिसंबर में, पीक दिसंबर 15 दिसंबर के आसपास, और दिल्ली अपनी चरम सीमा पे ठंड में। आई थिंक हमने 4-5 डिग्री में इंडिया गेट से राइड शुरू करी। और एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो चालू तो कर ली। अब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम दिल्ली के लोकल हो तो तुम गाइड करना सबको बाहर का रास्ता। ठीक है जी, चले।
मेरा पूरा पंचर किट एक सपोर्ट कार में। पहला पंचर हुआ एरोसिटी के सामने, कुछ नहीं, ठंड, टायर चेंज करने में भी हाथ कांप रहे। चलो सपोर्ट व्हीकल आया, टायर निकाला, लगाया, पंप नहीं, पंप दूसरी गाड़ी में। फिर उस गाड़ी में बैठ के गए एक पेट्रोल पंप तक, नोजल था, लगाया, भरा, वापस आए, किसी तरह राइड चालू करी। जब तक मैंने राइड चालू करी सारे लोग निकल चुके, मतलब इनफैक्ट पंचर से पहले ही निकल गए थे। एक ही बंदा था मेरे साथ। आगे बढ़े, राजीव चौक क्रॉस किया होगा, दूसरा पंचर। अब मैंने पैनिक में फोन किया गौरव वाधवा को, भाई दूसरा पंचर हो गया यार, अभी भी किट नहीं है, अभी भी गाड़ी में। थैंकफुली एक राइडर आया पीछे से, उससे बोला कि मुझसे पंचर ट्यूब ले ले। फिर गौरव और शिशिर थे कॉल पे, उन्होंने बोला पैनिक मत, पहले तो अंदर से लाइनर निकाल दे, तो मेरे ख्याल से पिंच पंचर हो रहा है। तब तक ऑर्गेनाइजर चीरो वाज देयर, चीरो हैड कम इन, पंप आया, भरा, लगाया। टाइम लॉस हो चुका था, और वो पीरियड होता ना, ब्रेक इन हो जाता है। नई राइड 1400 चलानी है, 40 किलोमीटर में 2 पंचर हो गए। मैंने कैसे चलेगी भाई साइकिल। और वो होता है जब आपका दिमाग को बोले छोड़ दे, गौरव ने बोला छोड़ना नहीं है, राइड करनी है पूरी, ये 40 किलोमीटर में नहीं छोड़ना, चल। बैठे और चल पड़े। अब मैं हो गया हूँ सबसे पीछे, लास्ट राइडर इन द ब्लॉक। कितने राइडर्स हैं? आई थिंक उस समय उस वाले एडिशन में आई थिंक 9 या 10 राइडर थे, और सब लोग आगे निकल चुके थे। बैठा, टोल क्रॉस किया होगा, पहला पिट स्टॉप था, रुका, चीरो एंड पूनम वर देयर, सैंडविच लिया और एक बनाना लिया, पॉकेट में डाला, मैंने रुक नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, और साइकिल शुरू करी। खाता ऑन द गो ब्रेकफास्ट। आई थिंक धारूवेड़ा के आसपास पहला बैच पकड़ लिया मैंने राइडर्स का। अब साथ मिल गया तो कॉन्फिडेंस आ गया। आई थिंक राम वॉज देयर एंड जारुल वॉज देयर। आगे बढ़े, धारूवेड़ा क्रॉस किया, लंच पे रुके, लंच किया, फिर आगे बढ़े। अभी क्या कि बीच में गाड़ी मिली तो गर्मी हो गई थी, तो जैकेट वैकेट भी उतार के दे दी। अब शाम होगी, गाड़ी नहीं, जैकेट नहीं, एक हाफ जैकेट थी। वही होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हो, आपको पता तो है नहीं, बिकॉज यू नेवर डन दिस, यू नॉट श्योर कि क्या होगा। जयपुर में घुसे, ठंड शुरू, 10 बज गए थे रात के, आई थिंक ऐसे कुछ टाइम था। तो राम ने मुझे बताया कि देसी जुगाड़ करते हैं, न्यूज़पेपर लगा लेते हैं आगे। ओके। हम किसी ढाबे पे रुके थे चाय पीने के लिए, ठिठुर रहे हैं, और वहां पे वो लड़के टाइप थे, साइकिल देख के वो गए और वो साइकिल दिखाओ ये वो। हमको भी लगा पता नहीं क्या चल रहा है, तो हमने ऐसे ही कहानी घुमा दी कि हम आर्मी के राइडर्स हैं और वो हमको ट्रैक कर रहे हैं, ये वो करके हम निकल लिए। आई थिंक मैंने राइड खत्म करी होगी 11:30-12 बजे रात को, सुबह 6 बजे के चले हुए। पहुंचा, पहले दिन तो हो गया, आए गए तरह से। जो यूके से मेरे फ्रेंड जैक आए हुए थे, उन्होंने राइड खत्म कर ली थी। अगले दिन सुबह 5:30 बजे का फ्लैग ऑफ। अगले दिन की, पहले दिन थी दिल्ली टू जयपुर, अगले दिन थी जयपुर से भीलवाड़ा। फिर राइड शुरू हुई, अब तो कंपनी थी, बात करते करते भीलवाड़ा की राइड कंप्लीट। उस दिन भी यही 10:30-11। नेक्स्ट डे वॉज भीलवाड़ा टू खेरवाड़ा। खेरवाड़ा इज द बॉर्डर टाउन ऑफ गुजरात एंड बॉर्डर टाउन ऑफ राजस्थान एडजॉइनिंग टू गुजरात, और वो निकलता है उदयपुर की वो सारी पहाड़ियों से। शाम तक आई थिंक हम लोग उदयपुर पहुंच गए थे, दोपहर तक, दोपहर 3-4 बजे होंगे। फिर था वो मेन राइड, 70 किलोमीटर पहाड़ियों पे निकालना है। जीरो एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग ऑन हिल्स। अब मैं और जैग सब लोग साथ में निकले, और ऑब्वियसली जब आप स्लो हो जाते हो, अगला वाला चल रहा है आगे, वो आगे थे। डिसाइड हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर में मिलेंगे, एंड आई कुड नॉट मैच इट अप बिकॉज आई वॉज वेरी स्लो। ऑब्वियसली वेट वॉज देयर, फटीग आ ही चुका था बॉडी के अंदर। तो एक पॉइंट ऐसा आया, एंड आई थिंक जैग ऑल्सो हैड सम इंजरी वेर ही वॉज इन पेन, तो वी वर टोल्ड कि आप चलते रहो, आप रुकना मत, जहां जहां रुको। एंड ही वाज लाइक कि कुछ भी होगा तो फोन करना। ठीक। बीच में एक मौका ऐसा आया कि मैंने देखा कि मेरे पास पानी खत्म होने वाला है, ORS में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ढाबे पे रुका, पानी लिया, ढाबे वाले ने बोला सर आगे ना भील का एरिया है, रुकना मत। और रात हो चुकी थी, हाईवे, नो स्ट्रीट लाइट्स, ओनली ट्रक्स मूविंग। अब अंदर से हो रहा है कि भाई कुछ हो ना जाए, यू कांट रिस्क योर लाइफ, साइकिल तो चला रहे हो।
रास्ते में जहां रुकता था कोई गाड़ी आती थी डर लगता था, बट आई केप्ट राइडिंग। तो एक पॉइंट ऐसा जहां वो ना ब्रेक डाउन आ जाता है, व्हाई एम आई डूइंग दिस टू माई सेल्फ, नहीं करना, आई क्विट। मैंने चीरो को फोन उठाया, मैंने आई एम क्विटिंग। कितना किलोमीटर हो चुका था यहाँ पे? तीसरे दिन का ऑलमोस्ट 70% डन था। So तो कुछ how many days 40 was the whole project? 5 days, 5.5 days। थर्ड डे पे था मैं उदयपुर टू खेरवाड़ा, भीलवाड़ा टू खेरवाड़ा, बट ये सेगमेंट उदयपुर टू खेरवाड़ा का था उन पहाड़ियों पे। So some 700-800-900 kilometers. हाँ, कुछ 650-700 किलोमीटर हुए थे उस समय, 50 किलोमीटर की और राइड बाकी थी। मैं चीरो को फोन किया, मैंने कहा कि बॉस क्विट कर रहा हूं, मैं नहीं कर। तो चीरो ने मुझे बोला कि तू करने क्या आया था यार, राइड करने आया था ना, तो राइड कर। मतलब नहीं हो रहा मेरे से, ऑनेस्टली नहीं हो। चीरो प्लेड विद माई माइंड। चीरो ने बोला तुझे पिक करने नहीं आऊंगा, अगर तुझे आना है ना तो ट्रक में डाल के लेकर। मैं साइकिल ट्रक में क्यों डालूं, मैं साइकिल खराब हो जाएगी। तो उसने बोला फिर चला ले। मैं बोला चलो देखता हूँ। ब्रेक लिया, देन यू सेटल योर माइंड। मैं बोला चलाता हूँ चल। देन यू कम इन टू दैट फेज की टारगेट छोटा करता हूँ, लाइक आई टेक अ ब्रेक एट एवरी 5 किलोमीटर्स। करते पेडल मारते मारते मारते, सेल्फ टॉक, लिसनिंग टू म्यूजिक, करते 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 आई थिंक खेरवाड़ा का होटल और मेरे डिस्टेंस में कुछ 11-12 किलोमीटर रह गए थे। टोल दिख गया था मुझे, शेफाली का फोन आया मुझे। एंड हियर डीसी वाज ट्रैकिंग मी, लाइक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ जिसमें मैं इकलौता राइडर, सब ट्रैक कर रहे हैं मुझे, सारी अपडेट्स पास ऑन हो रही हैं। Sure. बीच बीच में मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, शेफाली को अपडेट जा रही हैं। एंड दिस वाज अ ब्रिलियंट एट इट, लाइक ट्रैकिंग। आई थिंक वो जो होता है ना कि एक टीम आपको पुश कर रही है, तो वो था। मुझे याद है शेफाली का फोन आया कि कहाँ हो। मैंने अभी भी 12 किलोमीटर बाकी हैं और 12 आई थिंक 11:30 बज चुके थे रात के। शी लाइक वेयर आर यू, आई सेड आई एम ऑन द हाईवे। एंड ऑब्वियसली वाइफ being wife, and she's like कि you said that you'll have a partner on ride. I said he's just finished, मैं भी पहुंच रहा हूँ, like no this is not done and it's unsafe, ये वो। और माइंड इतना like उसे बोलते हैं ना कि माइंड फक हो चुका था कि like I just snapped. I said listen, keep the phone down, like I don't want to talk, and I just snapped, which I realized a little later I shouldn't have. यार उसने तो मतलब आउट ऑफ कंसर्न फोन किया था ना मुझे, आई शुड हैव डन दिस, बट उस समय आप अपने पीक पर होते हो गया। मैंने ढाबा क्रॉस किया, मैं एक चाय वाले पे रुका, मैंने चाय बोली कि दादा चाय देना, अदरक वाली चाय चाहिए तेज, और पार्ले जी चाहिए। मैंने गौरव को फोन किया क्योंकि गौरव ने पिछले साल सेम राइड करी थी और ये सेगमेंट भी खतरनाक सेगमेंट था क्योंकि सबकी थोड़ी हालत टाइट इसी पे हुई थी। आई स्पोक टू गौरव, गौरव गिव दैट पेप टॉक की अबे 10 किलोमीटर है, हो जाएगा, सोना मत तू यहाँ पे, सोना मत, लेट जा, कमर सीधी कर, सोइयो मत। चला आई थिंक 6-7-8 किलोमीटर दूर चीरो स्कॉर्पियो लेके खड़े हुए। एंड ही वाज लाइक कि आजा लेने आया हूं तुझे, क्विट कर रहा है। मैं यहाँ इतना आ गया तो 4 किलोमीटर और चला लूंगा ना, हेडलाइट ऑन करो, चलो साथ में। एंड आई फिनिश्ड, खत्म किया। एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई कॉल्ड अप शेफाली। पहले तो मैं रोया, लाइक आई हैड अ ब्रेक डाउन, आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ पूनम भाभी। मैं रोया, वो तो होता है ना दिल का गुबार निकालना कि, एंड इट्स आउट ऑफ अनबिलीवेबल थॉट कि क्या कर लिया मैंने, कहाँ पहुंच गया मैं 3 दिन साइकिल चला के, जो जहां पे मैं सोच रहा था क्विट करूंगा वो भी कर लिया। एंड देन योर बॉडी गिव्स अप ऑन यू। और चीरों ने बर्फ रखी हुई थी कि सेकाई कर लेना, क्योंकि फिर वो अगले दिन सुबह तो राइड करनी है, उसमें थोड़ी लीवे मिलना है आपको। आई कॉल्ड अप शेफाली, आई सेड लिसन आई एम रियली सॉरी, आई शुडंट हैव डन दिस टू यू। आई वाज लाइक इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। गौरव से बात होगी, मैं पहुंच गया, सोने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह मैं जैग वाज वेरी हैप्पी, ही सॉ मी, उठे, राइड शुरू करी। आई थिंक दैट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाज खेरवाड़ा टू बड़ौदा। आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल सनराइज ऑफ माई लाइफ, क्रिम्सन स्काई, और वो देखा और मैं फिर रो पड़ा। वो होता ना कि आप अपने आप से बात कर रहे हो, रो रहे हो। एंड वी स्टार्टेड, बड़ौदा की राइड थी और वो पूरा गुजरात का सेक्टर क्रॉस करना था हमें। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट टफ पॉइंट फ्रॉम द हीट परस्पेक्टिव, बिकॉज आई थिंक इट क्रॉसेस द लाइन ऑफ कैंसर और द लाइन ऑफ केप्रिकॉन। वहां से क्रॉस होता है, गोधरा आता है बीच में,
और ना मुझे, क्योंकि राजस्थान में ठंड थी, तो मैं लेगिंग्स पहन रहा था, वार्म लेगिंग्स, उससे मुझे रिएक्शन हो गया एंड दिस एंटायर सेगमेंट आई हैड बॉयल फॉर्मेशन। तो मैंने डीसी वाले ग्रुप पे डाला, साकेत वाज अ डॉक्टर, उसने मुझे एक दवाई बोली, मैंने बैकअप व्हीकल को बोला कि यार ये दवाई ला दो मुझे कहीं से, एलेग्रा थी वो, खा ली मैंने, और उसके बाद आई नींद, साइकिल चलाते चलाते सो गया, तो थैंकफुली गिरा नहीं, वो तो एलेग्रा से नींद आती है? हाँ, आई थॉट इट्स सिट्रिजिन दैट डज नहीं, दैट, एलेग्रा बट से भी नींद आती एलेग्रा है, से भी आती है। प्लस बॉडी भी तो आपकी उतनी टायर्ड है, तो ऑफ कोर्स और झपकी मारी मैंने, जो कुछ सेकंड के लिए था, बट देन आई रियलाइज कि यार ये गलत है। तो मैं, और भर दोपहर तो मैं रुका, और गुजरात में ना वो बस स्टैंड इज लाइक अ खंडर, उस सेगमेंट पे, उस रोड पे, गोधरा के रोड पे, वहां मैंने साइकिल लगाई, मैंने डीसी के ग्रुप पे डाला, मैंने बोला बॉस यहाँ सो रहा हूँ, आधे घंटे में उठा देना कोई मुझे, और मैं बैठे बैठे सो गया। और अब क्योंकि गुजराती हूँ तो लोकल था, डायलेक्ट तो पता था, 2-3 आए, पूछा, गुजराती में बात करी, उन्होंने बोला कुछ चाहिए, एंड दे स्वीट, लाइक पानी चाहिए, कुछ चाहिए ला दें, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, मुझे बस सोना है। सोया, और लंच के लिए जब मैं रुका तो लंच आई गॉट पैच्ड अप विद जारुल, शी वाज अनदर राइडर हु वाज फ्रॉम बड़ौदा ओनली, एंड शी वाज डूइंग सो शी वाज राइडिंग फॉर अ कॉज, सो शी वाज सपोर्टिंग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो हम लोग मिले, ऑब्वियसली गुज्जू कनेक्शन हो गया, लंच किया, साथ में स्टार्ट हुए, तो हर कोच वाज राइडिंग अलोंग साइड इन अ कार विद हर, तो मुझे भी साथ मिल गया कि चलो एक से भले दो। बड़ौदा क्रॉस किया, रात को हम लोग बड़ौदा पहुंचे, जहां पे चेक पॉइंट था, होटल में चेक इन किया, माई एक्स बॉस केम टू मीट मी, ही वॉज इन बड़ौदा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आए, मिले, एक ड्रिंक लगाई, मस्त एकदम, सो गया। सुबह उठे, बड़ौदा का पूरा साइकिलिंग कम्युनिटी आया हुआ हमें वेलकम करने के लिए, आई थिंक जारुल जिस चैरिटी को सपोर्ट कर रही थी वहां से लोग आए हुए, हमने राइड शुरू करी, और उस दिन ये हुआ कि मैं और जारुल टीम्ड अप हो गए, ऑब्वियसली कनेक्शन बन गया था, मैंने बोला साथ राइड करते हैं, एंड जारुल्स कोच वाज नॉट देयर दैट डे, और उसके पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, लाइक उस समय ना साइकिलिंग वाज आल्सो वेरी न्यू, एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ पेरेंट्स बीइंग सो इन्वॉल्वड इन देयर डॉटर्स साइकिलिंग थिंग। Her father was at that point of time, I think Gir National Park के, one of the national parks के conservator. Oh. He got called back to Gandhinagar. तो उस दिन कोई नहीं था सपोर्ट में, तो when I spoke to her coach, he said कि तुम लोग साथ में राइड करना, अंकल रास्ते में मिलेंगे। हमने राइड स्टार्ट करी, बड़ौदा से सूरत होते हुए, आई थिंक तालासरी में, बॉम्बे का लास्ट बॉर्डर टाउन था, वो था लास्ट बिग राइड ऑफ दैट डे, और नेक्स्ट डे तालासरी से मुंबई की राइड थी, विच वाज आई थिंक हार्डली 90 किलोमीटर्स। तो तालासरी वाज ब्रेक पॉइंट कि यार यहाँ खत्म होगी, और शाम को पार्टी वार्टी अरेंज कर रखी थी चीरों ने कि आफ्टर पार्टी ये वो, यहाँ पे एंजॉय चिल करेंगे। शुरू हो गए, वी डिडंट रियलाइज कि हेडविंड मिलेगी, खतरनाक हेडविंड, मैं और जारुल एक दूसरे आगे पीछे, एंड जारुल वाज आल्सो टायर्ड। एक समय मुझे याद है हम लोग रुके एक जगह पे, बर्फ लेके सर पे रखा, इधर रखा, कंधे दर्द हो रहे हैं, कि करते करते लंच किया, एंड वी डिडंट रियलाइज कि टाइम बढ़ता जा रहा है। शाम को आई थिंक 5 बजे के आसपास हमने सूरत क्रॉस किया होगा, जो हमें दोपहर में कर लेना चाहिए। बाय द टाइम हम सूरत को क्रॉस करके तालासरी की तरफ बढ़ रहे थे, और वो पूरा एरिया इज रोलिंग, लेग्स आर टायर्ड, 5 days ऑलरेडी देयर, 1000 ऑड, 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर हो चुके हैं, बॉडी गिव अप कर रही है, एक एक पेडल ना ऐसा लग रहा था कि 1 किलो का बाट उठा रहा हूँ, लाइक ऐसा लग रहा था पैर में वेट है मेरे। थैंकफुली 60 किलोमीटर बाकी थे, जारुल के पेरेंट्स आ गए, और हम रास्ते में ऐसे होते थे कि टोल पे रुके, मैंने जारुल को बोला 15 मिनट देख ले, मैं 15 मिनट पावर नैप लेने दे, सोया, पानी डाला, कोक पी ली, मतलब वो है कि बॉडी उस मोड में आ गई कि रिएक्शन ही नहीं है। उसके पेरेंट्स आए, लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट, like her father used to, like every time he used to get down from saddle, used to come do massages, release, क्या चाहिए, और मुझे मतलब शुगर रश चाहिए था, तो मेरे पास शुगर के सैशेस थे, तो उन्होंने बोला चाय मिल जाती थी, पहुंचते थे, बेटा चाय ले ले, जितने भगवान याद आ सकते थे ना मैंने सारे याद कर लिए होंगे विपिन भाई, मतलब रो के चलाइए, मतलब लिटरली आंसू बह रहे हैं और हम साइकिल चला रहे हैं, 2:30 बज चुका था रात, and we were alone on the highway with a car behind us,
I think when we entered hotel, 3-3:30 बज चुके थे. पार्टी क्या ही अटेंड करते, सब तो सो चुके थे जो लोग पहुंचे थे. पार्टी ओवर थी. चीरो ने मेरे लिए एक अलग से रूम कराया हुआ था. जनरली हम शेयरिंग पे होते थे. एक अलग से रूम दिला दिया था. खाना था, मैंने खाना खाया, एक हॉट वाटर बाथ लिया, सो गया. मुझे ध्यान नहीं है, 3:30 बजे सुबह उठाऊं तो चीरो वाज देयर. और सुबह तो और दिमाग के अंदर चल रहा है सुबह 5:30 बजे राइड है. थैंकफुली चीरो दैट डे साइड कि बिकॉज दीज टू पीपल डिड नॉट क्विट आफ्टर राइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स, लाइक 22-21 घंटे हो चुके थे हमें. बोले कि लेट्स ऑल स्टार्ट, आखिरी राइड बची है, हम साथ में स्टार्ट करेंगे. एवरीबडी अग्रीड. वो दिन, वो जो आखिरी दिन था, आई वॉज विद शंकर हु वाज फ्रॉम बॉम्बे, वॉज अ ट्राइथलीट. पता नहीं, मैंने शंकर को बोला, शंकर भाई मैं ना आज आपके साथ साइकिल चलाऊंगा, बस प्लीज मेरे को साथ में रखना. और बोला कि तू साथ साथ रहना, जब मैं ब्रेक लूंगा तब ब्रेक लेगा. मैं हाँ ठीक है. पता नहीं कौन सी माता सवार हुई मेरे अंदर कि करते कराते जब मैंने बॉम्बे एंटर किया ना, मैं शायद पहला या दूसरा बंदा था. हर दिन सबसे फिसड्डी था, उस दिन सबसे आगे था मैं. पहुंचे, चेंज वेंज किया, गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुंचे, राइड खत्म हुई, मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला हो गया टॉर्चर पूरा. एंड आई थिंक दैट इज हाउ द फर्स्ट G2G गॉट ओवर. ये थी पहली G2G की कहानी. बट क्रक्स ये कि रियलाइज हुआ कि यार योर वेट प्लेज सो मच ऑफ रोल एंड आई वाज हैवी. In this ride, there were so many moments that you got over and Overwhelmed. this Yeah, was yeah, a absolutely. this was a victory over all those voices in your Absolutely. head. एंड में जब आप खत्म करते हो ना हर दिन, तो वो एक विक्ट्री है. फिर जब आप वो 5-6 दिन का सफर कंप्लीट करते हो, तो वो तो सबसे बड़ी विक्ट्री है ना कि यू रोड लाइक पीपल गॉट अमेज्ड व्हेन आई सेड आई रोड दिल्ली टू बॉम्बे एंड लाइक वो लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं यार. Put this in perspective. देखो तो कहाँ से आए हो आप अभी. हाँ मतलब you are somebody who was riding 30 kilometers with बच्चे like kids, right? and when I look back and I said यार 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने. और मेरा उस दिन हुआ ये कि मेरी राइड खत्म हुई और मैंने साइकिल दी. हम लोग आई थिंक लियोपोल्ड या कहीं जाके बैठे थे, एक दो बियर भी. और मेरे ही जान पहचान में देयर वर डिस्टेंट कजिन्स हु वर कमिंग बैक टू दिल्ली इन द कार. तो बोले भैया आप हमारे साथ आ जाना. मैंने भी जोश में हाँ बोल लिया. मैंने साइकिल चीरो को बोली कि चीरो आप साइकिल वापस ले जाना. चीरो बोला हाँ मैं ले जाऊंगा, पहिए उतार ले, पहिए तू रख ले, मैं फ्रेम ले जाऊंगा. ही हैड टू कम वाया गुजरात ओनली. मैंने फ्रेम दे दी. मैं उनकी गाड़ी में जब बैठा तो वो घर शिफ्ट कर रहे थे, आधी गाड़ी भरी हुई थी सामान से. किसी तरह बैठा दिल्ली के लिए वापस. इतना थका हुआ था, गाड़ी में ही सो गया मैं. बट व्हेन आई केम बैक एंड द काइंड ऑफ वेलकम आई गॉट ओवर हियर, where it was unbelievable for a lot of people कि भाई ये बंदा कर गया जो क्विट कर रहा था बीच में. जिसके मतलब मेरे 2 पंचर स्टार्टिंग में, तो उसके बाद पूरी राइड में पंचर नहीं हुआ मेरा. लाइक जिसका पंचर हो गए थे, जो छोड़ने वाला था, बीच राइड में इतनी बार क्विट कर रहा था, एंड देन ही फिनिश्ड इट. इट वाज लाइक अमेजिंग एंड इट वाज लाइक अ विक्ट्री फॉर माई सेल्फ ओनली. लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो. एंड द सेकेंड G2G when it happened, it only happened for one reason, that I wanted to challenge my body. वो एक साल में I started doing CrossFit, I started doing a lot of workout, strength workout. उस समय तक running was just 2, 3, 4, 5 किलोमीटर. But I think 2018 की बात है वो. हाँ, I think 10 किलोमीटर के सेगमेंट में और 21 कर चुका था मैं. तब एक VDHM दौड़ चुका था. बट मैंने अपने आप को ये बोला कि यार ये तोड़ूंगा मैं. और वो था मेरा आई थिंक 90 kgs के आसपास. 1992 आई हैड अ बेटर बाइक. आई वाज इंड्योरेंस वाइज आई वाज अ बेटर एथलीट. शिशिर था उस राइड पे मेरे साथ, और मैंने शिशिर के साथ ही मैंने बोला तू है तो मैं हूँ, और फोड़ा है मैंने. मतलब हर दिन 7 बजे राइड ओवर, कहाँ रात को 12 बजे, यहाँ 7 बजे मस्त चिल करके राइड खत्म हो जाती थी. और उसी द वेंजेंस पॉइंट वाज द सेम पहाड़ी. वी दैट entire stretch, I think we finished it by before sunset. Sunset होने से पहले हम होटल पहुंच चुके थे. We had wrapped our ride. और मैं शिशिर को बोलता है ये इस पे रो रहा था मैं. But again, like when I did it second time versus the first time was more challenging. Second time was like a different feel altogether. But दोनों का अपना वो है. But first is like your victory over something that you never imagined. Love that spirit, bro. Like love that
fighting spirit. It's crazy. Yeah. Like like I said, put this in perspective from where you started and to your first 100K and then 200K and then jumping onto this and then finishing it. It's not everybody who starts and that finishes to be able to pull through that, and then having suffered so much in the first one, having the audacity to plan for it again and challenge it, like take it head on and then do it is remarkable to me. Like Absolutely. It's worthy of some immense respect. So well done, bro. Thank you. Thank you so much. Yeah. There are quite a few other things that I want to discuss with you. There's a big story that we need to discuss. But before that, just going back to the first part of the conversation where we were talking about weight loss, and you said you're working in call centers and then the lifestyle around and everything, right? A lot of the people who are overweight, and me included, I believe we are the urge to eat and the urge to maybe drink as well. Yeah. Sure, environment plays a massive role. There's no doubt about that. Environment is like, if you're looking to change also, environment is what the main thing that you need to fix first. But there's something internal, isn't it? There's kuch so andar se hai, something that is making you do that as well. Absolutely. Is it not? So what was the urge that you were trying to numb through food and drinks? So see, for me, it was always that when Ravin got born na, तो मुझे था कि at least I want to be a fit father. When my son grows and he wants to do sport, I should not be sitting on the sideline. Sure, that was the impulse for you to change. But when you hadn't changed, when you were in the middle of that mess, what were you trying to numb? Because food and drink, the urge to there have was nothing numb. I think I got carried away with the flow. Environment, people around you, like. और मैंने मेरे से ना नहीं बोली जाती. Or but relationship with food is always been there, right? So when you said you always loved food, तो खाना to an extent was not the core reason. Khana, I was never. I'm still not an outside eater. Like I still carry food from. Okay. home. So what was the main reason for your weight alcohol, gain? which caught a lot. Like I said I was chubby, right? But that alcohol intake and excess, and with that lifestyle, यार आप सो रहे हो कुछ घंटे और my alcohol, like I used to drink whiskey with coke. Yeah. Like, those things, और आप realize नहीं कर रहे हो ना उस समय, मतलब जंक भी चल रहा है, आप बाहर बैठे हुए तो आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि आप क्या खा रहे हो, बर्गर भी चल रहा है, and the kind of food you're eating, you let your guards down. You're not conscious, right? Like your guards are down. आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करते जा रहे हो, और वो करते जा रहे हो, and you're not giving rest to your body, and then that becomes a habit and it becomes a loop. And exactly, even when I started with my weight loss journey, my weight loss, I think, majorly happened post-COVID. Because till then, it was plateau. वो 90 पे आके 88 पे आके अटक चुका था, और मैं वैसे ही था. Like if you see my first marathon pictures, I was heavy. और COVID, I think when it came in and I came back from Bangalore and I joined CureFit and COVID hit and I was back here, running छूट गई. और तब तक ना मैं एक लहजे में आ चुका था रनिंग के. I had a coach. 2018, 2019 मुझे समझ में आ गया मुझे क्या बेटर करना है. My heart rate was up. I had to bring it down. I started getting better. I think 2020 NDM जब किया था तो 158, 159 में किया था मैंने. Which is a good thing for me. from a 245 half marathon runner to a 158. Yeah. But COVID ने तो zero कर दिया था. And I couldn't run inside the house and circles, right? So I left it. When I came back, weight बढ़ा हुआ था क्योंकि COVID में कोई exercise तो हुई नहीं, strength workouts हुए थे, but weight बढ़ा हुआ था. I was again at 90, 92, in fact 94 हो चुका था मैं. And my heart rate had gone for a toss. Running had gone to zero. Like my first run, 730 pace, heart rate 194. And then couple of us got together. So we were 8 of us. I think me, Jay, Rajneesh, Haritro, a few of us. We got together. JD, Krishan, couple of us. हमने एक अपना पैक बनाया और हमने बोला कि हम इसी बबल में भागेंगे. क्योंकि कोविड था, पता नहीं था, तो हमने एक बबल क्रिएट कर लिया था. एक अपना कंफर्ट जोन था, हम अलग भागते थे. और हमने बोला कि हम इसी बबल में भागेंगे. किसी को छींक भी आती थी, हम पहले एक दूसरे को बता देते थे, भाई ये हो गया, टेस्ट करा लेना, या ये करा लेना, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आऊँगा. We were very conscious about it. Like, and I think that camaraderie is the best I have right now. Like, that is my crew. So
और हमने खुद सेल्फ ट्रेन करना शुरू किया. मैं और जय अपने प्लान बनाते थे, हमने सेल्फ ट्रेन, हम खुद ट्रेन करेंगे. पहला वर्चुअल ADHM किया 150 253 फोड़ दिया एकदम. तब मैंने सोचा कि अब मैराथन करेंगे, क्योंकि उससे पहले लोग बोलते थे मैराथन दौड़ो. मैंने बोला भाई अपने से 5 घंटे में नहीं होगा. लाइक आई वांट टू डू लाइक कि जहां मैं अपने बॉडी को टॉर्चर नहीं दूं. एंड फुल रिस्पेक्ट, एंड आई स्टिल गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट हु डू इट इन लॉन्गर आवर्स, बट मैं वैसा नहीं था कि मुझे अपने आप को टॉर्चर नहीं देना था. मैंने बोला कि मैं अपना टारगेट है, मैं इतने में करूंगा, 4:30 में करूंगा. पहला मैराथन 4:15 का टारगेट दिया था, 4:14 में किया इंडिया. फर्स्ट मैराथन आई थिंक कोविड के बाद वही हुई थी शायद. वो किया और बर्लिन साइन अप कर लिया था मैंने और जय ने. उसे बोलते ना पड़ी लकड़ी लेना लेनी. और डेल्टा आ गया, डेल्टा वेव आई, फिर बंद हो गया, फिर ऑन किया, 0 से स्टार्ट. माय हार्ट रेट अगेन वाज अप. फिर मैं, जय और किशन जी, आई थिंक हम नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास वो एक लेन है उसमें भागते थे, क्योंकि मेरे घर से नजदीक था. हम लोग वहीं मिलते थे, वही बबल वापस, और वहीं दौड़ते थे. और वहां से एंड आई मेट एन ओल्ड साइक्लिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, दीपेंद्र, और वी स्पोक अबाउट IF बिकॉज आई हैड टू गिव दैट शॉक टू माई बॉडी, इंटरमिटेंट फास्टिंग. उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझाया कि कैसे करना है, कैसे फॉलो अप करना है, धीरे धीरे कैसे. आई थिंक वहां से स्टार्ट किया मैंने. एंड आई गेव माई बॉडी कार्ब डेफिसिट. आई वेंट ऑन कार्ब डेफिसिट क्योंकि कार्ब बहुत इनटेक था मेरा. और वो शौक आया मेरे लिए काम कर, एंड इट वर्क फॉर मी. आई थिंक इन 3 months, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रेस थी. 90 to 75 स्ट्रेट 75. जिस दिन मैंने फ्लाइट बोर्ड करी थी आई वाज 75 kgs. एंड इफ यू सी माई पिक्चर, मतलब मैं उसमें अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो लौंडा लग रहा था. आई वाज अ किड देयर, एंड आई कुडंट बिलीव कि यू कुड डू दिस टू योरसेल्फ. एंड फ्रॉम IF I did water fasting. I tried few things. Then on a vacation I met another person who's become a friend. He does a lot of juice fasting and water fasting. He preaches that and he follows that. He coaches people out of no monetary incentive involved. उससे मुझे समझाया, वो फॉलो किया मैंने कि वाटर फास्टिंग कैसे करनी है, जूस फास्टिंग कैसे करनी है. It worked for me. Now I can do like I can go on 3 days without food, and it worked for me. That's amazing. No, fasting has definitely proven health benefits. So great, sir. Yeah, so I got the answer. Please talk us through the biggest story of your life, at least in the recent times. You were diagnosed with cancer. It's such a big word. इसको बोलते हुए भी डर सा लगता है और हेजिटेशन होती है कि आप सही तरीके से, सही कॉन्टेक्स्ट में, सही जगह बोल रहे हो भी या नहीं बोल रहे हो. तो it is, and you've been through that whole journey. Please talk us through, what were you diagnosed with? When was the diagnosis? And what was it like with your family at the time dealing? So diagnosis तो बहुत accidentally हुआ था. ठीक है. There was no motive behind it. कोई symptom नहीं थे. So this cancer is called Hodgkin's lymphoma. It's a very common cancer, but it's common in the age group of 20 to 30 or over 50. And I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. It's related to blood. So there are lymph nodes which get created. I had a lymph node here. I had this big lymph node here. If you see this cut, that is a cut. Okay. And I had a big beard, just like you have. I had a beard. दिखता नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं देता था, मुझे कोई फर्क नहीं था. The only person who used to tell me was my barber कि सर हटवा लो ना, मतलब यहाँ पर है क्यों रखा हुआ. मैंने भी टाइम पास, हाँ ठीक है क्यों हटवाना है. When something is not giving you trouble, why do you want to report? मैं भी चला जा रहा था, and it was there for my body. What was it? There were some knots. So there was a big knot here. Big knot. Okay. So it was a lymph node, which is created here, and that knot was in my body for 10-12 years or more, if I recall. 2006-07 से था. Okay. और कभी बीच में नहीं दिखाया? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिखाया नहीं. मैंने 2020 में my very good friend Apurva, she got married to Soham. Both of them Chikara. are doctors. Apurva, no, not Apurva Chikara. There's Apurva Gomber. Okay. So she's a type 1 diabetes advocate plus a doctor. Her husband is also a doctor. They got married. They're now in Boston. So उनकी शादी कोविड में हुई थी और मैं शादी भी नहीं जा पाया था. तो शादी के बाद जब मिला तो उनके 2-3 डॉक्टर फ्रेंड बैठे थे, मैंने उनको दिखाया. ये साइड लिम्फ नोड है, हटवा लेना. फिर वो बात मैंने अनसुनी कर दी. फिर मैं शिवाली को बोलता रहा, यार ये ना ट्यूमर टाइप लग रहे हैं मुझे. वो मुझे बोलती थी यार क्या फालतू बोल रहे हो, बट ठीक है हटवा लेंगे.
2022 में my dad had a surgery for hernia and I took him to a friend's hospital. तो जान पहचान का हॉस्पिटल, जान पहचान के डॉक्टर्स, तो मैंने वहां पे डैड के डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बेटा कि लिम्फ नोड है, सर्जिकली रिमूव कर देंगे, कुछ कुछ टेस्ट है वो करा लो, करा लिए, ठीक थे टेस्ट, चले गए हटवाने के लिए। सर्जरी हुई, शाम को डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि बेटा हटा तो दिया है, उन्होंने मुझे दिखाया, इट वाज लिटरली दिस बिग, लाइक लिटरली एज बिग एज अ एग, स्मॉलर एग, एंड ही सेड दैट आई एम फियरिंग समथिंग, एंड हमने इसको बायोप्सी के लिए भेजा है। एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन द रूम बिकॉज मैंने शिफाली लोगों को घर भेज दिया था। दैट इज द टाइम व्हेन इट हिट मी कि कुछ तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट डे रिलीज हो गया, घर आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। वापस से एक उन्होंने बोला कि बेटा स्विमिंग मत करना, टांके लगेंगे, और थोड़े दिन दौड़ो मत, स्वेटिंग होगी। मैंने वापस से जब ठीक हो गया तो दौड़ना शुरू, साइकिलिंग शुरू, स्विमिंग शुरू। उस समय मैं ऑलमोस्ट ट्रायथलॉन के लिए पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था। रिपोर्ट आई बायोप्सी की, इनकन्क्लूसिव थी, तो मैंने सबसे पहले अपूर्वा को भेजी, डॉक्टर है, अपनी दोस्त है, तो उसने, और उसके पति को भेजी। पति डर्मेटोलॉजिस्ट है, अपूर्वा पैथोलॉजिस्ट है। सोहम इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसने बोला कि बॉस रिपोर्ट इज नॉट गुड, बट उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनकन्क्लूसिव है, यू नीड वन मोर टेस्ट। अपूर्वा ने बोला एक और टेस्ट कराओ, वी गॉट अनदर टेस्ट डन, उसमें आया हॉजकिंस लिम्फोमा। अपूर्वा सेड कि हॉजकिंस लिम्फोमा है एंड यू विल हैव टू मीट अ ऑन्को। दैट इज द टाइम व्हेन यू आर हिट बाय अ बस, दैट्स द मोमेंट कि, एंड मुझे याद है मैं घर से निकला था, ऑफिस आ रहा था, रिपोर्ट आई थी। अपूर्वा को मैंने, दोपहर का टाइम था, वो यूएस में थी, वो अफ्रीका में थी उस समय, मैंने उसको भेजा, उसने तुरंत बोला, द फर्स्ट कॉल आई डिड वाज टू माई, मतलब भाई है, अब दोस्त से भी बढ़कर है मेरे लिए, रजनीश को। उसको कॉल किया मैंने कि भाई, मीटिंग में था, मैंने बाहर आ, मैं इसको बोला कि बॉस से रिपोर्ट आ गई है, कैंसर है। और ही वाज लाइक, एंड रिएक्शन एकदम रुक जाता है ना, योर वर्ल्ड स्टॉप्स देयर। विमेन हैव सिक्स सेंस, तो शिफाली को सिक्स सेंस हो चुका था। विमेन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस। मैंने टोल क्रॉस किया था, मैं इसी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे था, शिफाली का मुझे फोन आया कि रिपोर्ट का क्या हुआ। अब झूठ कैसे बोलूं, तो मैंने बोला अपूर्वा विल गिव यू अ कॉल एंड शी विल एक्सप्लेन। तो बोला नहीं नहीं रिपोर्ट, मैंने बोला शी विल गिव यू अ कॉल एंड एक्सप्लेन। मैंने अपूर्वा को बोल दिया था कि यू गिव अ कॉल एंड एक्सप्लेन। अपूर्वा ने कॉल करके बताया, मैं ऑफिस पहुंचा, शिफाली का फोन आया, घर आ जाओ। मैंने रुक जा, अभी ऑफिस पहुंचा। बोला नो नो कम हो इमीडिएटली। घर पहुंचा, थोड़ी देर बाद मेरे इन लॉज भी आए हुए, थोड़ा सा गमगीन माहौल था, होगा वाजिब है, लाइक नोबडी इज प्रिपेयर्ड राइट, लाइक एक हंसता खेलता आदमी जो कल सुबह तक साइकिल चला रहा था, दौड़ रहा था, स्विमिंग कर रहा था, आज कैंसर बोल दिया तुमने उसको। बट देन आई, तब तक अपूर्वा ने भी समझाया कि हॉजकिंस लिम्फोमा है एंड इट इज क्योरेबल, लेट्स मीट एन ऑन। तो मैंने शिफाली को बोला लेट्स मीट एन ऑन को। थैंकफुली फ्रेंड्स, द सेम फ्रेंड हु, जिसके हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी, ही गॉट मी एन अपॉइंटमेंट, वी मेट एन ऑन को एट बत्रा। एक्स आर्मी, प्रॉब्ली 3-4 साल बड़े होंगे मुझसे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष, ही अंडरस्टूड। और थैंकफुली डॉक्टर भी ऐसा मिला जिसने बहुत टाइम दिया, लाइक उन्होंने एकदम बिठा के समझाया कि डोंट वरी, इट्स अ कैंसर विच विल गेट क्योर्ड, इट हैज अ 100% रिकवरी रेट। नॉन हॉजकिंस नहीं है वो बेटर है, बिकॉज नॉन हॉजकिंस इज लीथल, इट विल स्प्रेड। एंड देन ही आस्क्ड मी कि कोई सिम्टम, बोला फटीग, क्योंकि दो ही सिम्टम है, या तो फटीग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। तो मैंने, ब्लीडिंग तो कभी हुई नहीं, ना दर्द हुआ, फटीग को आपने वैसे ही, मैं तो हंस पड़ा। मैंने बोला आज सुबह 21 किलोमीटर दौड़ा हूं मैं, सैटरडे का दिन था जब हम मिले थे। एंड ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग, तो मैंने बताया। बोला हाउ लॉन्ग इज इट बीन इन योर बॉडी। बोला टेक्निकली इस समय तक मल्टीपल लिम्फ नोड फॉर्म हो चुके होने चाहिए थे बॉडी में, बट मेरे पास एक ही था। देन ही सेड दैट आई थिंक यू आर इन अ गुड स्पेस, लेट्स गेट योर पेट स्कैन डन विच विल टेल स्प्रेड कितना है। पेट स्कैन हुआ, लोकलाइज स्प्रेड था सिर्फ इस एरिया के अंदर। एंड इवन ही वाज अमेज्ड दैट it did not spread in your body despite being in your body for more than 10 years. He said this should have been at stage 3 or stage 4. Yeah. And you're stage 1.
So one, you should be thankful for your physical fitness, that your immunity was so high. Second, you came at the right time. And मुझे अभी भी याद है, अप्रैल 2 को सर्जरी हुई थी, अप्रैल मिड में ये डिस्कशन हुआ था, May 2nd was my first chemo. So my first chemo was May 2nd. My second chemo was May 16th. And every 14 days were chemo planned. 4 chemos But this done. was removed and chemo was still needed because This was surgically removed, but the spread of the cancer was still here. So one, the chemo had to be given to kill the cancer cells, and then the radiation was to be given to ensure that it does not spread further. So the radiation happened. तो फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर से यही था कि सर दौड़ूंगा कब, कैन आई रन, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे, मैंने बोला कीमो में दौड़ लूंगा, तो बोले हाँ मतलब देखेंगे, वील टेक अ कॉल. फर्स्ट डे हुआ कीमो, मैं घर पहुंचा, और सेकंड डे आई वेंट एंड ही सेड देख डोंट रन बिकॉज इट्स पीक समर्स, you might get dehydrated, and dehydration will lead to loose motions, which is against the treatment. Because body will lose everything. Go for your walks. And I started going for my walks. So I used to literally walk 35-40 kilometers every week during that time and come home and do strength workouts. तो दूसरे कीमो में रियलाइज किया मैंने कि पहले 2 दिन ना नहीं हो पाता है कीमो के बाद. It's very painful. And even after that your body becomes more fatigued. कीमोथेरेपी कैसे होती है? So basically अगर मैं इसको बहुत सीधे लैंग्वेज में समझाऊं तो IV फ्लूइड्स के थ्रू ड्रग्स जाते हैं आपकी बॉडी में, एंड एक तरीके से 2000 जहर है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, जो जहर को मार रहा है. Those are drugs, but those are very, very lethal drugs. Actually does a lot of imbalancing inside. They're killing cells, like killing live cells. So it changes your taste, it changes your hormones, it changes your, like, it'll do a lot of changes that only you as a person will realize. आप चिड़चिड़े हो जाओगे, खाने का टेस्ट मर जाएगा. Like I never felt like eating anything. मैं सिर्फ शिफाली used to plan my diet and I used to eat it just as a medicine. I used to take my food. अगर आप मुझसे बोल दो ना 2 दिन बिना खाने रहे, मैं रह सकता था. And the imbalance that it creates, like it is, आप रियलाइज ही नहीं करोगे. और फटीग ऐसा आता था, मुझे लगता था भाई मतलब 5 किलोमीटर वॉक के मुझे मैं 21 भाग के आया हूँ. एंड आई हैड नॉट डिस्क्लोज्ड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल न्यू इट. मेरे फैमिली में एक चीज डिसाइड हो चुकी थी कि हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे. सो द ओनली पीपल हु न्यू इन द फैमिली वाज माय इन-लॉज, माय मम एंड डैड, एंड दैट इज इट. And a very handful of friends. And nobody knew it. We did not want to disclose it. We said we'll talk about it when it's over. क्योंकि एक तो ना relatives bring 2 things. One, a lot of suggestions. Second, a lot of fear factor. I did not want that to get to my mom and dad. Because I knew Shefali was strong. But I did not want it to catch up to them. Even in chemo, thankfully वो मैं बोलता ना support system. So Rajneesh used to go with me on each chemo. So who's Rajneesh? So Rajneesh Vedi and I go back almost like 2.5 decades now. We started our professional careers together. We're more like family. Is he in Adidas Runners as well? Yes, he is. So yeah, I think I follow him. He's now in Bangalore, and he was then working with Make My Trip. So Rajneesh को जब मैंने बताया, Rajneesh has a connection to cancer because he lost his parents due to that. And he understood it very well. So रजनीश ने बोला कि मैं चलूंगा कीमो पे. ऑल्टरनेट कीमो पे मेरा एक दूसरा फ्रेंड है, who's not a runner, who's not a cyclist, Addy, like I swear by him, he used to come. Another friend of mine used to send his driver कि तू ड्राइव नहीं करेगा. मैं बोला नहीं, मैं ड्राइव करूँगा. नहीं, तू ड्राइव नहीं करेगा, my driver will go with you. तो फैमिली से कोई नहीं जाता था. द्रविन को सिर्फ ये लगता था कि पापा हॉस्पिटल जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, एक पट्टी बंधा के आ जाते हैं, बिकॉज वो कैनेला लगता था मुझे. आई यूज्ड टू गो. 3 कैनेला के थ्रू ड्रग्स जाते थे और 2 IV के थ्रू जाते. 2 injections to be given and 3 cannula. And I used to take chemo, come back home. Chemo हुआ, radiation on हुआ. Radiation कैसे होता है? So basically it's a machine in which they place you. They create so मेरे फेस का एक कवर बना था, और इस कवर पे मार्किंग दी गई थी कि कहाँ पे रेडिएशन देना है. So it's radioactive rays which go
and they basically, it's like an invisible ray which goes and kills the cells. तो ये जगह burn होती है and it kills. So वहाँ पे marks दिखेंगे, वो marks चले गए हैं, and you actually lose, वो जो बोलते हैं ना cancer patients lose hair, it's because of that treatment. So chemo and radiation से you lose hair. So I literally lost half of my beard. कहीं और से नहीं गए, beard से चले गए बैठे बैठे बाल, and I had to literally go like keep a goatee और सारे बाल उड़ाने पड़े थे मुझे. But radiation got over in August, और मैं तब तक ना धीरे धीरे रेडिएशन के समय मैं धीरे धीरे जॉग शुरू कर चुका था. एंड आई वाज कंसल्टिंग चंदन चावला दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड चंदन चावला सेड कि रन वॉक, क्योंकि हार्ट रेट सबसे बड़ा इम्पैक्ट कीमो का होता है आपके हार्ट रेट पे, बिकॉज इट इज सो लीथल दैट ड्रग दैट it creates an entire imbalance on your heart rate. My walk used to be at a heart rate of 155, 160. And मुझे याद है मैं walk करता था और मेरी ना every week used to be my blood test. अब मैं walk कर रहा हूँ तो there were days when I used to call the guide, the flebo, to come and collect my samples from Nehru Park. कि वहाँ आजा भाई, वहीं से ले ले, मैं walk कर रहा हूँ, take the samples from here. And I got through my radiation, my reports were fine. Radiation से पहले एक PET scan हुआ, clear. My Dr. Manish was very happy. In fact, my whole set of doctors were amazing. Like, I had Dr. Irfan, who was my radiologist, Dr. Raina, who was my oncosurgeon. Like, amazing guys. And these guys understood my physical fitness journey also. So they gave a green signal कि भाई अब चालू कर लूँ. तो मैं धीरे धीरे jog turned into run turned into faster runs. October में I think I went to London for work. That's where I started. Like वो change of weather, change of atmosphere मिला. Running came back. मैंने तब sign up कर लिया था TMM के लिए, और मैंने full sign up कर लिया था. Dr. Chawla told me sign up for a half. मैंने बोला full करते, नहीं होगा तो half कर लेंगे. And कोई timing pressure नहीं था. And because I was low on confidence, क्योंकि running छूट गई थी, and I was supposed to run Chicago in that year. I was into lottery. I deferred it. तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि क्या मैं फुल भाग पाऊंगा, क्योंकि मैं तो डिस्टेंस भागा ही नहीं हूँ. एंड आई थिंक नवंबर एंड डिसम्बर हार्डकोर ट्रेनिंग. डिसम्बर वाज कोर ट्रेनिंग. लाइक डिसम्बर आई रिमेंबर आई डिड अ माइलेज ऑफ अबाउट 340-350 किलोमीटर्स. जनवरी में TMM भागा. अरी, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, अरिजीत, ही सेड आई विल पेस यू, मैं साथ दौड़ूंगा. 4 घंटे 3 मिनट में कंप्लीट किया था हमने. एंड अगेन इट वाज लाइक कहाँ से कहाँ, जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं. एंड आई कुड हैव डन द सेम थिंग, बट फॉर मी इट वाज लाइक जस्ट फाइट बैक डूड. I did not call cancer, right? Like, I did not invite it. And when it went out, why should I just repent on it? मेरा पॉइंट ये था कि एक ही तरीका हो सकता है कि यार just take it with a pinch of salt and just get over it. It's fine. It was a bad phase. Like, you can't make it the book of your life. You can make it a chapter in your life. That is what, and I still say it. Amazing. For me, that was a phase. That was a chapter in my entire book. Book तो बहुत बड़ी है. Yeah. एक chapter बना के छोड़ दो ना, हो गया. But then I realized that hope. And when I disclosed 31st December 2022, my last long run, and I think I did 36K that day. That day morning before my long run, I put up a post that this is what I went through. And I really apologized to a lot of people because as friends, I did not tell them. They thought that probably I did not trust them, but no, it was not. Just that I wanted to keep it to myself. Get cured and then tell them. उस period में काफी लोगों को पता चल गया था. And how long was the entire journey of recovery? Treatment till August, and then 4 months of getting back on feet. 7-8 months altogether. Less. Like completely getting back. Like September, October, I started running. I was back. It's also because I kept my physical fitness active. Yeah. I used to walk. I used to do strength workouts. So I have, before we lose this thread, please tell me about the moment you spoke with the oncologist for the first time. He said you should be grateful for the fact that it's only at stage 1 despite being in your body for all these years. Did he attribute that to your fitness? Yes. Also? He said... He clearly said that you should be thankful. These were his words, that you should be thankful for your physical fitness and
the way of life that you've adopted, that this did not move and became stage 3 or 4. And he also said कि अगर ये तुम्हारी बॉडी में इतने सालों से था, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें अभी ये लग रहा हो. बहुत लोगों ने बोला होगा पहले क्यों नहीं हटा लिया, पहले क्यों नहीं सर्जरी कराई, वेट अभी तक वेट क्यों किया, लो हो गया ना कैंसर. ही सेड इट्स नॉट नेसेसरी. अगर तब हटा लेते, हो सकता है, बोले हॉजकिंस लिम्फोमा इज अ साइलेंट कैंसर. दिस वुड हैव बीन कैंसरस और आज जाके पता चलता और आप दोबारा तो बायोप्सी कराते नहीं. सो ही सेड बी थैंकफुल फॉर दिस मोमेंट दैट यू गॉट इट डन. राइट. एंड दैट इज वन थिंग दैट आई नेवर रिपेंटेड. मैं उस चीज पे कभी नहीं रोया. लोगों ने आके भी लाइक फ्रेंड्स सेड पहले करा लेता है, एंड आई सेड इट्स ओके, मींस इट्स देयर. Yeah. व्हाट डू आई डू? So your fitness did play a role. Yes, absolutely. Like nothing else. And now tell me, when you were diagnosed with this and when life took a U-turn, you could have easily, old habits die hard, right? And all the habits are actually neural patterns that are ingrained, right? So जो आपने दारू पी है, सुट्टे पिए हैं, या जो भी खाया है जिस तरीके से, जो जिंदगी एक जी है, those neural patterns remain and they remain with you till you die. They become weaker over time. There will be stronger patterns formed over time, but they remain. वो tributaries रहती हैं और उसमें आप फिसल सकते हो कभी भी दोबारा जाके. नहीं, तो मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने सिगरेट पीना 2012 में ही छोड़ दिया था. I had quit smoking. Okay. And I went cold turkey. वो 1-2 नहीं, फिर cold turkey गया था मैं. 2012, 13, 14, 15, 16 छोड़ दिया. फिर मेरा ना ऑन एंड ऑफ पीरियड था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ तो मैं मजे मजे में स्मोक कर लिया, वरना छोड़ दिया. फिर वो फिजिकल फिटनेस शुरू हुई तो फिर छोड़ दिया. स्विमिंग शुरू हुई, फिर मुझे रियलाइज हुआ यार स्विमिंग तो इसके बगैर हो, मतलब ये तो इसके साथ तो नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ दिया. लेकिन फिर वही पीरियड था. कभी Tell me about this period of detection and recovery and everything, or right after that as well. जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो यार उस जर्नी में you could have like easily, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है, क्या क्या नहीं होता है, राइट? तो you could have easily fallen back into the old ways. I fell back during COVID. Like वो कोविड का टाइम है ना, स्ट्रेस, 18 घंटे काम कर रहे हो, तो कभी सिगरेट पी ली, छोड़ दी, पी ली, छोड़ दी. बट जब ये हिट हुआ ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस ये तो दोबारा नहीं कर सकता. Like I spoke to my doctor and I had a very candid conversation. I said, what do I need to leave for life? He says, like, don't ever. And I've never looked back on it. Now it doesn't matter to me. Like, वो cold turkey जो पहले cold turkey थे ना, अब उसका double cold turkey हो गया मेरे साथ. Like, and I spoke about alcohol to him. So he said, after your entire treatment and recovery is over, socially be to it, but don't make it a habit. It's not a habit. Yeah. I go days off, months off, doesn't matter. Yeah. Now I think it's my physical fitness and my importance to that has become higher. My responsibility to life has also become higher. क्योंकि यार मौका तो एक ही बार मिलता है ना. देख लिया तुमने वर्स, इससे वर्स क्या देखोगे? Like the worst than this is like you become a vegetable or you die. You've seen death. Cancer is death. First thing people associate is death. And I'm so glad when this all happened and when I disclosed, the world got to know, like people were amazed. And even till today, I have people reaching out whose friends are suffering, whose family is suffering. There are people who don't want to go through treatment. I have gone and done chat sessions with them, done kind of a therapy sessions. I'm so glad. And I actively promote it. My t-shirts, my running t-shirts have that slogan. Yes, that it's beautiful. Rohit 1, cancer 0. Yeah. And और मुझे कुछ चाहिए नहीं यार. I am just trying to say that what could have finished you or what could have stopped you, there is a life after that. People take it as a full stop. कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा इसके बाद. Like recovery भी हो गई, treatment हो गया, and then people just leave it. कि cancer है. But there's so much of life beyond that. And that is what I keep saying, that your life doesn't stop. You have to move on. Bhai, तुम्हारी family hai. You have to live your life. And that is the reason the medicines are there, that they recover you. You need to fight it back. There are only two ways out of it, right? Like, and I keep saying this, that either you succumb to it, you surrender to it and you say, हो गया भाई, ऐसा ही है. Or you fight it back and you say, no, dude,
I will fight it. I will live my normal life. And I wanted to live my normal life. I wanted to go back to work. I wanted to go back to running. And that is exactly what I wanted to do. And 2023, exactly what I did. I lived up to what I promised to myself. And I promised to myself that within 6 months, max, I will run. Jan, TMM, April. And this is also thanks to the, and we can touch on that, thanks to the power of community, thanks to the power of friends around me. Please That's talk about it. that Because support system. tell me who's played a massive I will role come on in it. your recovery. Adidas gave an opportunity for me to run Boston. Like, dream come true. Like, for anyone who's an amateur runner or a marathoner, he knows what importance Boston has in their life. I remember when I finished TMM, I broke down. Like, it is big thing. Boston, when I finished, I was crying. Ashish, AK, my friend, had finished. He was I know there AK. in front of me. And he was waiting. And he allowed me to cry. Like, ki nikal de. Take it off. It got over. Chicago was deferred from 2022. It was a vengeance. Finished Chicago. So 403 TMM, 355 Boston, 340 Chicago. And then I had an opportunity to raise $1,000 as charity and run a virtual New York to get into New York. Immediately 2 weeks from Chicago, we ran a virtual, me and Jay, at Nehru Park. And we did it in 344 and got through New York. So New York I'm running this year. 4 marathons in that year. 2 hard effort half marathons, 146 and 143 half marathons. In that entire year of, like, immediately after recovery. Couldn't have asked for more from myself. Beautiful. And I think it's also because, one, that I was headstrong, that I wanted to come back. Second, it was the support system. So I think the biggest support system I had was Shefali. Obviously, your family is your biggest support system. I think Shefali played a very crucial role. She was as close to as a doctor. She planned the diet, she did her research. I think the first day when we got the news, I think that's the only day I saw her hassled. After that, I think she was more strong than me. Then seeing your son, like, that is your biggest factor, right? Like, you see your child and you want to come back, your parents, and then is your support system, which was gratefully, I would say that I earned some great friends. Like, they're more than family. Like, taking everybody's name, it'll take a lot of time. फिर आप But एक का भूल जाओगे और वो ठीक नहीं होगा, हाँ, है तो ना? I think lot of them, and they know who they are, Yeah. you know, means everybody stood behind me and they're like, होगा bro, मतलब we behind you. Like, मैं इससे पहले आवाज करता था ना, लोग खड़े जाते थे and they used to do health checks on me कि तू दौड़ रहा है. Like, लोग ऐसे थे जो मेरे दौड़ने पे भी they were concerned कि यार heart rate देखना, ensure that your diet is well, are you fine, are you not fine. मुझे याद है लोग they used to come and crew. Like, मैं दौड़ रहा हूँ, hydration support. Like, मुझे ये फील होता था कि शायद मेरी विक्ट्री में उनकी भी विक्ट्री है, you know. And then, like, Amna, Hamid, AK, they were together when we did Boston. Same group and a little more. Ari and everybody were there when we did Chicago. Like Mukta, Indrani, a lot of people. Like, we were 9-10 of us. And when you finish among your own set of friends, what else do you need? Yeah. And then I've already taken those names like Rajneesh and Jay and all these people. Like, these are the people who are behind you. These are the people, this entire set of people became the backbone. And this is, I think, ये कमाइए. ये आप नौकरी में पैसे से नहीं कमा सकते. ये जो दोस्ती है, ये जो आपने बॉन्ड बनाए है ना, लाइफ लॉन्ग चलेंगे ये. And I think I am fortunate, and I think this was the biggest factor that I could overcome. Family and friends. These are the 2 factors that made me, like, if today you ask me, it's like people say sorry. When I talk about cancer, the second thing they tell to me is, Oh, we're sorry to hear. that. And I tell them it's okay. I'm absolutely fine. मतलब मुझे कोई problem ही नहीं है इस बारे में बात करने के लिए. Because, and the reason sorry comes out of people, and that is the reason I did not tell a lot of people, because I did not want people to feel sorry. And this is exactly what I want to tell people, that don't feel down, don't feel sorry. You did not invite cancer. It came, it's part of you. It'll go. There's a right medium to it.
approach the right doctor, do the right treatment, follow the right process. Like I have another friend, Punita. She got diagnosed with cancer 2023 beginning. Cyclist, great cyclist. Unfortunately diagnosed. Went through chemo sessions, long chemo sessions. Unfortunately lost her hair as well. But we kept chatting and she is so strong. Gracefully accepted it, gracefully recovered. She did her first 10K NDM and I was so happy seeing her there. And today look at her, she's living a life. That is exactly what I want people to follow, right? Fight it out. Life is all about fighting. You fight a disease, you fight every day, right? We all fight our own. Yeah. We all have demons inside. We all have bad days. It's a phase in life. It's a dark phase. What a cancer patient goes through, I'll tell you that usko hi pata hota hai. I will tell you there are days which are very bad. But I think it's a support system which brings you up. Yeah. You don't have to succumb to it. You don't have to let it eat it. It's like how I would say, it's like something that will eat you up. Okay? But don't allow that to eat you up. Just keep fighting it back, keep pushing it back. One day you will keep up. वो चींटी देखिए ना जो चढ़ रही होती है, गिर रही होती है, चढ़ रही होगी, गिर रही होगी, वो दिन आएंगे आपके पास. बट आपको ना वो चींटी बन के धीरे 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 चढ़ते रहना है, क्योंकि आपका हाल वो चींटी जैसा ही होगा. बिकॉज बहुत टाइम लगेगा. बट देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग. You need to focus on that silver lining and reach there. That is it. That is the day when you see that silver lining. That is it. And I think I've been fortunate. And I can run today. That is the biggest achievement. I am back on my feet. I am better than what I was. Like before cancer, I was a 4-hour marathoner. Today I'm a 340 marathoner. Over the period तो नहीं हुआ. मेहनत लगी, मशक्कत लगी, फोकस थी, ट्रेनिंग थी, एफर्ट था, बट विश्वास था सबसे. एंड आई थिंक द बिगेस्ट वर्ड दैट यू सेड वाज दैट थिंग इन माइंड. वो जिद जो थी ना, और वो जिद बहुत जरूरी है. आपको ना वो जिद चाहिए, वो परसिवरेंस चाहिए, वो जिद चाहिए, वो फोकस चाहिए, एक वो अप्रोच चाहिए. मुझे ये करना है यार, कैसे भी करूंगा मैं. एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कैंसर पेशेंट के लिए है वो सपोर्ट सिस्टम. आपने उसको बेचारा मत बनाओ, प्लीज डोंट डू दैट. लेट हिम फोकस. और ऑन आई ऑल्सो से लिसन टू योर ऑन्कोलॉजिस्ट, डोंट लिसन टू एनीवन एल्स. प्लीज डोंट गूगल. हमारे घर में ना गूगल कोई देखता ही नहीं था. गूगल मत बनो, डॉक्टर मत बनो. डॉक्टर को वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसको फॉलो करो, बट give that support system to that person. That is very important. Couple of people who went into that phase and I spoke to them. Only thing I told to them is be physically active. आपकी बॉडी नहीं अलाउ करेगी, बट प्लीज रहना, वो बहुत जरूरी. फटीग आएगा, कोई बात नहीं, 4 स्टेप चलोगे, बैठ जाओगे, फिर खड़े होना, फिर 4 स्टेप चलना. वो 4 8 हो जाएंगे, 8 16 हो जाएंगे, 16 32 हो जाएगा, फिर शायद आप आधा किलोमीटर चलोगे, बट चलना. बिकॉज नहीं चलोगे ना, वो आपको खा जाएगा अंदर से, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो ना. आप क्या कर रहे हो? आप ट्रीटमेंट कराते हो, घर आते हो, लेट जाओगे, किताब पढ़ लोगे, कितना पढ़ोगे, टीवी देख लोगे, कितना देखोगे, किसी से बात करोगे, वो और डिप्रेशन में डालेगा आपको. अरे सॉरी आपके साथ ही हो गया. वो फेस ही नहीं चाहिए लाइफ में. Eradicate that. I keep telling it. Tell it to minimum level of people. Tell it to people who will help you overcome it. Talk positive, be positive, think positive. लाइफ में सब अच्छा होगा. और ये तो फेजेस हैं यार, मतलब इससे भी बुरे दिन लोग देखते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है. Like look at COVID. Yeah. What worse than that? Yeah. Wonderful, brother. I think it's overwhelming. Everything that you've said, everything that you've been through. It is for me. It is overwhelming, and it's so heartening and it's so heartwarming to see your attitude and your approach to life through this and after this. It's immensely valuable, I think, to hear your life's journey. I think it teaches you, right? Because It does. this kind of lesson you don't get in any school. Yeah. This is, वो बोलते हैं ना कि जिंदगी सिखा देती है आपको. The life teaches you. Yeah. This is the life's lesson. No school, no college will make you learn this. Yeah, that's a wonderful note to end on. And I don't think I could have gotten anything more out of this conversation. I think sab bol diya aapne. It has everything. I think I had a very heartfelt conversation, and all I would say is if even few people get inspired or Or get hope. and hope is the biggest word. You said the right word, that hope
to do better, the hope, not just from cancer, from the overall journey also, if they get that hope of becoming better, doing better, getting better at things, my life is done, my mission is done, and that's what I want. Yeah, and like you said, it's a heartfelt conversation is all I crave on this podcast, and which is what we've just got. So thank you, and thank you for making time and coming over and sharing this. Thank you for inviting. After hearing so many podcasts, means it was, वो होता ना एक चाहत होती है कि कब आऊँगा, and that message from you, I think it was like, yaar, that was a surprise, but it's been so great to be here. It is, I think, hero's journeys. My podcast is really not about bigger distances, bigger medals and achievements. It is the ultra of life, and I think what you've gone through is it explains everything. It is the ultra of life that you're fighting, and there's so much to mine there and learn from. Yeah, that fight will continue, I would say, Vipin, because cancer is something 100% तो श्योरिटी नहीं है, बट आप कोशिश कर सकते हो कि उसको जितना दूर रख सको. फिजिकल फिटनेस एक तरीका है उसको दूर रखने का, मेंटल फिटनेस एक तरीका है दूर रखने का, एंड यू हैव टू फाइट इट आउट, एंड दैट इज अ फाइट विच आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू डू. आप जिंदगी में रोज लड़ाई करते हो, लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो, और हमारा काम है कोशिश करना और आगे बढ़ना. ये दो काम आई थिंक ऑल ऑफ अस डू दैट. लाइक यू फाइट इट, यू बैटल इट, यू मूव फॉरवर्ड, बाकी तो उसके हाथ में है. मतलब wise words, brother. Thank you so much. Thank you so much.